Am I audible? Hello. Yes, you are audible. Yes, you are audible. And is my screen visible? Yes. Okay. So, welcome to the day two of Android development workshop using Kotlin and Jetpack Compose. Yesterday was day one, and in that we learned about the fundamentals of Kotlin programming language. So, what we saw yesterday was the overview of basic programming in Kotlin. Yesterday we saw about variables, keywords, operators, all the three types of operators: comparison, arithmetic, logical. We also learned about functions and classes and objects. Uh, and we also learned about decision making statements, the if else, when. We also learned about inheritance. Today we will learn a little more about Kotlin, and then we will start directly the Android development. So few more topics from Kotlin are remaining, such as simple data structures, for loops, data class. So I will simply take you through all of that, and then we will deep dive into the real Android development using Jetpack Compose. So this is the content that we are going through today: Kotlin fundamentals, Android Studio, basic layouts, button in the app, and interacting with the UI. So if you have a computer nearby, just go to Google and type in Kotlin Playground. Click on the first link that shows there. Okay. So yesterday we saw about classes. So what is classes? Classes are blueprint of the object. And what is object? Object is an instance of the class. And I won't go in detail today, but I will revise the yesterday's concepts. So think of class as a template, as a blueprint that the architects design to build, and the object as the building that is actually built. Now, real life example of this could be, suppose in an organization there are 1,000 employees, and each have their own name, each have their own contact, each have their own address. So every time we will have to create multiple variables for each of these employees, and we will also have to create multiple functions for each of those employees. So how will we overcome that problem? How will we avoid writing the boilerplate code? Boilerplate code means repetitive code, the code that is same and does the same task. In this case it is the properties of the each employee of the organization. So how we will avoid writing that? So here we make use of classes. So what is classes? Classes is, like I said, it's a blueprint of the object. An object is the instance of the class. So we use make those blueprint and avoid writing the boilerplate code. So instead of creating what 10,000 variables and 10,000 functions, I will simply create one class and 1,000 objects for each of those employees, and this will help me avoid writing boilerplate code and waste my time. So what is generic data type? We will see about that. So yesterday we saw how to define a class. We use the class keyword, then name of the class. Let's suppose we have numeric question. Then let me define one another class. So this will make you easy how what to know about what is generic data types. This one I will name true or false. And one more class, text push. Okay. So we have I have defined three classes here. पहला है न्यूमेरिक क्वेश्चन, दूसरा है ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, और तीसरा है टेक्स्ट क्वेश्चन. अपने स्कूल में इस तरह के क्वेश्चन आते होंगे. किसी क्वेश्चन का आंसर नंबर में होता होगा, किसी क्वेश्चन का आंसर में ट्रू और फॉल्स लिखना होता था, और किसी क्वेश्चन में हमें पैराग्राफ लिखना होता था, एक पेज का, दो पेज का वगैरह. सो अब क्वेश्चन एक किसी भी एक क्वेश्चन की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है? क्वेश्चन का आंसर एक प्रॉपर्टीज हो सकता है,
क्वेश्चन की डिफिकल्टी एक प्रॉपर्टी हो सकती है, तो वो लिखते हैं हम कंस्ट्रक्टर में। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ब्लूप्रिंट तो बन गया और मेरे को अब बिल्डिंग बनानी है, तो बीच का जो फेज होता है उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। तो वैसे वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी एक कॉन्सेप्ट होता है कंस्ट्रक्टर का, जिससे हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज यानी कि बिल्ड करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, ये जो दिख रहा है ना आपको ब्रैकेट, उसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं। जैसे फंक्शन के अंदर हम इसी ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं। तो मैंने बोला था हर क्वेश्चन की दो प्रॉपर्टी हो सकती है, उसकी डिफिकल्टी और उसका आंसर। तो वेर वेर कीवर्ड यूज होता है एक वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, और वेरिएबल क्या होता है हमने कल देखे थे, एक स्पेस होती है जो हम एक वैल्यू के लिए रिजर्व करते हैं मेमोरी में और उसको एक नाम दे देते हैं, तो नाम को हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। तो डिफिकल्टी एक वेरिएबल हो गया। अब इसका टाइप होगा स्ट्रिंग में, और दूसरी प्रॉपर्टी थी हमारी आंसर। अब ये न्यूमेरिक क्वेश्चन है, मतलब आंसर नंबर में होगा, तो मैं यहां लिखूंगा इंट। इंट मतलब नंबर। कैप कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखना है। अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, इंट की जगह एन कैपिटल करके लिखता हूँ, तो ये डेटा टाइप नहीं है, ये आइडेंटिफायर हो गया, तो एन स्मॉल रखना होगा मुझे। ये अब डेटा टाइप हुआ। अभी ऐसा ही इस दोनों के लिए लिखता हूँ। अब ट्रू और फॉल्स में क्या आंसर होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो उसका डेटा टाइप क्या होता है, बुलियन। बुलियन की दो ही वैल्यूज हो सकती है, ट्रू या फॉल्स। या तो वैल्यू ट्रू रहेगी या तो वैल्यू फॉल्स रहेगी, तो मैं यहां लिखूंगा बुलियन। और टेक्स्ट टेक्स्ट क्वेश्चन होता है, उसका आंसर आप स्ट्रिंग में लिखते हो, मतलब टेक्स्ट होता है, और टेक्स्ट का डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का फॉर्मल डेफिनेशन होता है, इट इज नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, और हर कैरेक्टर की साइज होती है 1 बाइट यानी कि 8 बिट। अब हर तीन क्लासेस बनाए, हम तीन ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। पहले को बोलते हैं हम obj1। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका सेम है, जैसे हम वेरिएबल बनाते हैं वैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। where कीवर्ड ऑब्जेक्ट का नाम, इन दिस केस आई एम टेकिंग obj1 इज इक्वल्स टू को हम प्रोग्रामिंग में बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके आगे हम लिखेंगे क्लास का नाम। तो पहले ऑब्जेक्ट है, हम पहला मैं न्यूमेरिक क्वेश्चन क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। और इसको इसके कंस्ट्रक्टर है ना यहाँ पे दो, जो उसको वैल्यूज पास करनी है, अगर वैल्यूज पास नहीं करेंगे तो एरर आएगा। तो पहला है डिफिकल्टी। डिफिकल्टी में बोलता हूँ हार्ड, और दूसरे वैल्यू कंस्ट्रक्टर है आंसर। आंसर समझो मैं लिख देता हूँ 230 आंसर आया मेरा। अब और एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तीन ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम। ऑब्जेक्ट का नाम अलग अलग देना है, रिपीट हुए अगर कोई भी फंक्शन का नाम, वेरिएबल का नाम या ऑब्जेक्ट का नाम रिपीट हो गया ना, तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो मेक श्योर दैट name each identifier that you use in your programming code is unique. So object 2 and object 3, क्लास का नाम भी बदलना है, ताकि वरना ये तीनों ऑब्जेक्ट एक ही क्लास के बन जाएंगे। मेरे को तीन ऑब्जेक्ट बनाने, तीन अलग अलग क्लासेस के। अब इसमें मैं आंसर आ रहा है मेरा, समझो फॉल्स, FALSC। और इसमें टेक्स्ट तो मैं लिखता हूँ, क्या लिखूं, प्रूफ एंड स्क्रूवी। उसका आंसर है इस आंसर। तो हमने तीन क्लास बनाए, तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए। अब जेनेरिक डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट कहाँ आता है वो समझो। ये तीन क्लास बनाने से अच्छा जेनेरिक डेटा टाइप में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक ही क्लास बनाऊंगा क्वेश्चन करके, और ये जो आंसर वेरिएबल है ना उसको डायनामिक बनाऊंगा। मतलब वो इंटीजर वैल्यू भी स्टोर कर सकता है, बुलियन वैल्यू भी स्टोर कर सकता है, स्ट्रिंग वैल्यू, कोई भी डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो मेरे को तीन क्लास बनाने की जरूरत ही नहीं होगी। तो वही है जेनेरिक डेटा टाइप। उसका सिंटैक्स देख लेते।
तो जेनेरिक डेटा टाइप का सिंटैक्स, जेनेरिक डेटा टाइप का क्लास बनाना होता है, वो क्लास का नाम, क्लास कीवर्ड, क्लास का नाम, फिर एक ये दो सिंबल्स जिसको हम बोलते हैं स्मॉलर देन और ग्रेटर देन का सिंबल, उसके बीच में जेनेरिक डेटा टाइप का नाम और वैल्यू, वैल, प्रॉपर्टी नेम और जेनेरिक डेटा टाइप। वैल कीवर्ड क्या होता है? वैल कीवर्ड मतलब वैर और वैर में डिफरेंस क्या होता है वो कल हमने देखे थे। वैर कीवर्ड म्यूटेबल होता है, मतलब एक बार आपने उसको डिफाइन कर दिया आप उसको चेंज कर सकते हो। जैसे जावास्क्रिप्ट में होता है लेट और वैर, वैसा ही वैल वैर कीवर्ड होता है। और वैल कीवर्ड क्या होता है? कांस्टेंट की तरह काम कर सकता है। वंस डिफाइंड इट कैन नॉट बी रीअसाइंड। अगर आप रीअसाइन करने की कोशिश करोगे ना तो एरर आएगा। तो जेनेरिक डेटा टाइप का एक एक रूल क्या है? जो भी प्रॉपर्टी आप डिक्लेयर करोगे वो कंपलसरीली वैल होनी चाहिए, वैर नहीं चलेगी। तो हम देखते हैं कैसे करते हैं, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये जो तीन एक्स्ट्रा क्लास मैंने बनाया था हटा देता हूँ, और न्यूमेरिक की जगह में सिर्फ रखता हूँ क्वेश्चन। अब क्या सिंटैक्स था? स्मॉलर देन और ग्रेटर देन की साइन, उसमें उसके बीच में आएगा डेटा टाइप का नाम। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं टी। वैल कीवर्ड ही होना चाहिए, वैर नहीं यूज कर सकते, वैल। और यहां मैं असाइन करूंगा टी, कैपिटल। अब तीन ऑब्जेक्ट बनाऊंगा एक ही क्लास के। तीन ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इसमें ऑब्जेक्ट बनाने का जो तरीका है ना वो भी बदल जाता है, वो था पीपीटी में, बताता हूँ। वैल, ऑब्जेक्ट का नाम, क्लास का नाम, और जेनेरिक जो डेटा टाइप हम यूज कर रहे हैं, क्या वो इंटीजर है, क्या वो स्ट्रिंग है, क्या वो बुलियन है, वो डेटा टाइप हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। और पैरामीटर जो हम कंस्ट्रक्टर को पास करेंगे वो। तो मैं बात वैल कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे आएगा डेटा टाइप। इस बार क्या है? ये इंट है। इस बार क्या है? ये बुलियन है। और यहाँ पे है ये स्ट्रिंग, हेंस प्रूफ। जो भी कोड के अंदर आप देखते हो ना, कोई भी कोड के अंदर वो स्ट्रिंग होता है, और स्ट्रिंग इज नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। और हर एक कैरेक्टर की साइज होती है 1 बाइट। यहाँ है स्ट्रिंग। इस तरह से हम जेनेरिक क्लासेस बनाते हैं। इससे हमारा काम क्या हो गया? हमारा कोड होता है रिड्यूस। मतलब एक ही वेरिएबल को लेके हम अलग अलग उसको डेटा टाइप की वैल्यू असाइन कर सकते हैं। हम एक ही आंसर को हमने उसको इंट भी असाइन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट वन के केस में, ऑब्जेक्ट टू के केस में हम उसको फॉल्स असाइन कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट थ्री के केस में हम उसको एक स्ट्रिंग असाइन कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है जेनेरिक डेटा टाइप्स का। ये क्यों हेल्प यूज करते हैं हम? ताकि हमारा जो कोड है लिखने का काम वो कम हो जाए और हमारा टाइम बच जाए, और कोड ज्यादा मेंटेनेबल रहे। अब एक और बताना था, डेटा क्लास। आप कभी भी प्रोग्रामिंग करोगे, कोई भी चीज को डेवलप करोगे, तो आप एक क्लास, मॉडल क्लास करके एक होता है, उसके अक्रॉस बहुत बार आओगे। हर बहुत बार आपको एक मॉडल क्लास बनाना पड़ेगा। अब मॉडल क्लास क्या करता है? मॉडल क्लास, जो वर्ड सेल्फ डिस्क्राइबिंग है इसका, मॉडल मतलब डेटा को मॉडल करता है। समझो मेरे पास एक कार है, और उसके प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है? कलर, और उसका मॉडल नंबर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, कितने उसके ओनर्स रहे, वो सब उसके प्रॉपर्टीज हो सकती है। तो ये हो गया एक कार का डेटा। और मॉडल क्लास बना के इसका यूज क्या है मॉडल क्लास का? तो मॉडल क्लास एक्ट एज अ वेसल बिटवीन योर एप्लीकेशन एंड द सोर्स ऑफ डेटा। सोर्स ऑफ डेटा क्या होता है? आपका डेटाबेस, चाहे वो लोकली रहे या वो रिमोट रहे ओवर द नेटवर्क। So data class basically models your data, and it acts as a vessel between your application and the source of the data. That is either database stored locally on the device, or that stored remotely and accessed via the network and the APIs. So कैसे बनाते हैं? सिंपल है, पूरा क्लास का काम भी सिंपल है। सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज करनी है, यहाँ पे डेटा लगाना है, डेटा कीवर्ड। देखो ऑरेंज हो गया, ऑरेंज हो गया मतलब वो कीवर्ड है। कीवर्ड आप एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। और आइडेंटिफायर क्या होता है? किसी भी फंक्शन, किसी भी क्लास, किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम। यूनिकली किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफायर यूज होता है। जैसे हमारा नाम होता है, हमारा नाम क्या हो गया? एक आइडेंटिफायर हो गया। तो दैट्स ऑल अबाउट द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास इज यूज टू मॉडल योर डेटा, and it acts as a vessel between your source of the data and your application. अब डेटा स्ट्रक्चर में आते,
कोई भी डेवलपमेंट करोगे तो डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। अभी हमने वेरिएबल्स देखे यहाँ पे, इसको हटा देता हूं मैं। वैर नेम इक्वल्स टू अरमान। अब मैं एक वेरिएबल डिफाइन किया हूँ, उसका नाम दिया हूँ मैंने नेम, और उसको वैल्यू असाइन किया हूँ अरमान। बट मैं चाहता हूँ कि नेम वेरिएबल अरमान नहीं और भी ज्यादा नाम स्टोर कर सके, तो उस केस में मैं यूज करूंगा डेटा स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज अ डेटा स्ट्रक्चर? इट ऑर्गेनाइजेस इट डेटा एंड मेक्स इट एक्सेसिबल। तो मतलब एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आप मल्टीपल वैल्यू डाल सकते हो, और इस डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन टर्म्स ऑफ योर प्लेसमेंट। जब भी कहीं भी आप कोई कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो आपका जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का अगर रोल के लिए आप अगर अप्लाई कर रहे हो और इंटरव्यू दे रहे हो ना, तो डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर ही आपको टेस्ट करेंगे। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर या किसी और चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो शायद नहीं करे, बट अगर एसडीई रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो ना कोई भी कंपनी में, तो यू विल बी टेस्टेड ऑन डेटा स्ट्रक्चर। तो बेसिकली वो आपको प्रॉब्लम देंगे और आपको सॉल्व करना होगा। ये बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है, मैं इसकी इतना डीप में नहीं जाऊंगा, बट मैं बता रहा हूँ व्हाट इज अ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर अलाउज यू टू organize your data and makes it systematic and accessible. That's it. एक मिनट। ओके, सो एंड्रॉयड डेवलपमेंट के केस में हम तीन डेटा स्ट्रक्चर को बहुत यूज करते हैं। एक हो गया अरेज, अरेज तो आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलेंगे। एक हो गया लिस्ट, और एक हो गया मैप्स। ये तीन डेटा स्ट्रक्चर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट में बहुत यूज करोगे। तो हम पहले अब अरेज को देखते हैं। अब अरेज को डिफाइन कैसे करते हैं? अरेज को डिफाइन करने का तरीका सेम है, जैसे आप वेरिएबल को डिफाइन करोगे वैसे ही अरेज को डिफाइन करोगे, बट थोड़ा यहाँ पे ट्विस्ट है। देखते हो ट्विस्ट क्या है? मैं नाम हटा देता हूँ, मैं चाहता हूँ नेम के अंदर मल्टीपल नेम्स रहे, एक नेम नहीं रहे। तो मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखो, अरे ऑफ। इसके अंदर मैं अपना नाम डालूंगा और एक नाम डालूंगा और एक नाम डालूंगा। तो ये हो गया एक अरे। अरे organizes your data next to each other and allows you to store multiple values in a single identifier. आइडेंटिफायर क्या होता है? हम किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। तो वो हो गया अरे। अरे अलाउज यू टू स्टोर मल्टीपल डेटा। अब डेटा टाइप यहाँ पे सेम होना चाहिए। अब अगर यहाँ पे अरमान लिखे तो यहाँ पे आप बुलियन स्टोर नहीं कर सकते, मतलब ऐसा नहीं लिख सकते आप। डेटा टाइप कंपल्सरीली सेम होना चाहिए। अरे की केस में दूसरे डेटा स्ट्रक्चर में चलता है, अरे की केस में से डेटा टाइप सेम होना चाहिए। ठीक, ये हो गया अरे। अब अरे और दूसरा हमने देखे थे वहां पे लिस्ट। लिस्ट यह देखे थे। अरे देखो, वेर 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 कीवर्ड या वेर कीवर्ड जो भी वेरिएबल का नाम अरे ऑफ। डेटा टाइप स्किप कर सकते हो क्योंकि कॉटलिन को समझ में आ जाता है कि कौन से डेटा अरे के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं। तो डेटा टाइप यू कैन कंप्लीटली स्किप। और एलिमेंट्स, अब जो भी मैंने यहाँ पे ऐड किया हूं ना, अरमान, फरहान और जवाद, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स, एरे के एलिमेंट्स। और एरे का जो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, एलिमेंट का नंबर, जो इंडेक्स बोलते हैं उसको। हर एलिमेंट का एक एसोसिएटेड इंडेक्स होता है। मतलब ये अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती तो आपको लगेगा ये नंबर 1 एलिमेंट है, ये नंबर 2 एलिमेंट है और ये नंबर 3 एलिमेंट है। बट प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता। प्रोग्रामिंग में हम शुरू करते हैं जीरो से। तो ये जो अरमान है ना, ये नंबर 0 एलिमेंट है, मतलब ये 0 इंडेक्स है इसकी पोजीशन। नंबर 2 है फरहान, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, मतलब इसकी पोजीशन नंबर 1 है। और ये है जवाद, ये सेकेंड इंडेक्स पे। मतलब एलिमेंट तो टोटल 3 है, बट इसकी शुरुआत 1 2 3 नहीं होगी, 0 1 2 होगी। अगर यहाँ पे मैं चौथा एलिमेंट ऐड करता हूँ तो ये उम्र है ना, ये थर्ड इंडेक्स पे। 4 एलिमेंट तो है मेरे एरे के अंदर, बट जो उम्र की जो इंडेक्स है, जो उसका एसोसिएटिव पोजीशन का जो नंबर है ना, वो 4 नहीं है, वो 3 है। क्योंकि अरे के अंदर या कोई भी अब प्रोग्रामिंग में डेटा स्ट्रक्चर ले लो, उसकी जो इंडेक्सिंग होती है ना, वो 0 से शुरू होती है, कभी भी 1 से शुरू नहीं होती। तो ये है अरे को डिक्लेयर करने का और डिफाइन करने का सिंटैक्स। अगर आप चाहते हो कि आपको देखना है अब नेम के अंदर कोई एक नेम है कि नहीं, तो उसके लिए भी एक इजी है। इफ इफ डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है। अगर कंडीशन ट्रू हुई
तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, अगर फॉल्स हुई तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता। सिंपल सिंटैक्स है। मैं चाहता हूं कि मेरे को नेम अरे के अंदर देखना है कि अरमान है कि नहीं, तो मैं सिंपली लिखूंगा अरमान, उसके बाद स्पेस इन कीवर्ड और अरे का नाम दूंगा जो कि है इन दिस केस नेम, और प्रिंट करूंगा अरमान इज इन नेम अरे। देखते हैं, देखो प्रिंट हो गया अरमान इज इन नेम अरे। अब ऐसा एक नाम डालता हूं जो कि अरे में नहीं है। अमान नाम अरे के अंदर नहीं है, अभी ये प्रिंट नहीं होगा। जो इफ ब्लॉक है ना, प्रिंट नहीं होगा। क्यों प्रिंट नहीं होगा? क्योंकि जो हमारी कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, और फॉल्स होती है कंडीशन इफ की, तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता। और कंडीशन क्या है? कंडीशन ब्रैकेट के अंदर आपको जो भी दिख रहा है ना, अमान इन नेम, ये कंडीशन है। देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, कंसोल बंद हो गया। तो क्यों प्रिंट नहीं हुआ? क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। अब उमर अरे के अंदर है, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ उमर, तो ये उमर इन अरमान है। देखो जो इफ ब्लॉक है ना वो प्रिंट होगा। देखो प्रिंट हुआ। सो दिस वाज ऑल अबाउट अरेज। अगर आपको अरेज की साइज देखनी है तो अरे का नाम जो इन दिस केस है नेम, नेम डॉट साइज लिख के आप अरे की साइज देख सकते हैं। दिस वाज अरे। अरे organizes data sequentially. The data needs to be of same data type and the indexing starts at 0 instead of 1. अब लूप्स देखते हैं। अब यहाँ पे अरे है, तो मेरे को कितने बार अरे का, अगर मेरे को हर एलिमेंट को प्रिंट करना है, मतलब यहाँ पे 4 एलिमेंट है, तो मेरे को 4 बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। प्रिंट एल एन नेम 0। हाँ, ये बताना भूल गया मैं, अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते हैं। तो अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने का सिंपल सिंटैक्स है, अरे का नाम स्क्वायर ब्रैकेट ओपन इंडेक्स और अरे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या करेगा? ये अरे के जो 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको, उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, विच इज इन दिस केस अरमान। तो अगर मैं इसको रन करता हूं तो अरमान प्रिंट हो गया। अब मेरे को सारे एलिमेंट्स को अगर प्रिंट करना है तो मेरे को 4 बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, विच इज नॉट गुड एंड वेस्ट ऑफ टाइम। तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज अ लूप। अब लूप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या करता है? लूप बेसिकली एग्जीक्यूट्स अ स्टेटमेंट एन नंबर ऑफ टाइम्स। एन नंबर ऑफ टाइम मतलब जितनी बार आप उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो, एक ही स्टेटमेंट को या कोई ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को, उतनी बार वो एग्जीक्यूट होगा। कैसे लूप को बनाते हैं कॉटलिन के अंदर? हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो सिंटैक्स अलग होता है, कॉटलिन का अलग है। तो वी विल यूज फॉर कीवर्ड, FOR। एक नया वेरिएबल बनाते हैं हम, इन दिस केस में आई विल से एन इन अरे का नाम, और ये इस जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगी फॉर लूप की बॉडी, जो स्टेटमेंट हम चाहते हैं कि बार बार रिपीट, तो वो स्टेटमेंट हम फॉर के बॉडी में लिखते हैं। अभी एन क्या है? हर आइट्रेशन में, हर आइट्रेशन मतलब एक आइट्रेशन मतलब क्या? एक बार एग्जीक्यूट, एक बार एग्जीक्यूट होना, मतलब ऊपर से नीचे तक पूरा एक बॉडी को एक बार जब एग्जीक्यूट करते हैं वो आइट्रेशन 1 हुआ, फिर वापस से उसको एग्जीक्यूट करते तो आइट्रेशन 2 हुआ, फिर उसको एग्जीक्यूट करते तो आइट्रेशन 3 हुआ। तो हर आइट्रेशन मतलब रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन को हम, हर रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन को हम आइट्रेशन 1 आइट्रेशन बोलते हैं। तो प्रिंट स्टेट लाइन मेरे को 4 बार लिखने से अच्छा मैं एक ही बार लिखूंगा। देखो कैसे, प्रिंट मैंने हटा दिया, यहाँ लिखूंगा सिंपली प्रिंट एल एन एन। तो देखो एक ही बार प्रिंट लिखा, चारों नाम प्रिंट हो गए। क्यों हुए? क्योंकि जो प्रिंट एल एन है तो 4 बार रिपीट हुआ है, 4 बार रिपीट हुआ है, बट मैंने प्रिंट एल एन एक ही बार लिखा हो। क्यों? कैसे रिपीट हुआ? वो फॉर लूप की मदद से रिपीट हुआ। ये एन जो है ना, ये की एन एक नया वेरिएबल है जो हम फॉर लूप के, स्पेसिफिकली फॉर लूप के लिए यूज करते हैं। मतलब ये सिर्फ फॉर लूप के अंदर ही एक्सेसिबल रहेगा। आप इसको अगर बाहर यूज करने की कोशिश करोगे ना, एरर आएगा। देखो ये फॉर लूप की बॉडी के बाहर हुआ मैं, एरर आएगा। देखो एवरी एलिमेंट that is declared here inside for loop is not accessible outside for loop. देखो unresolved reference, n is not accessible, n हमने डिफाइन ही नहीं किए, प्रोग्राम को पता ही नहीं n है किधर।
क्यों? क्योंकि एन सिर्फ एक्सेसिबल है फॉर लूप के अंदर। तो ये था अरे। अरे हेल्प्स यू मिनिमाइज योर कोड, मतलब हर स्टेटमेंट को वो एन नंबर ऑफ टाइम रिपीट करता है। एन क्या है? एन ए आइटरेशन, मतलब आइटरेशन मतलब सिंगल एग्जीक्यूशन को हम सिंगल पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन को आइटरेशन बोलते हैं। अभी ये वाला कोड कितनी बार रिपीट हुआ? 4 बार रिपीट हुआ। पहले बार अरमान के लिए, फिर फरहान के लिए, फिर जवाद के लिए और फिर उमर के लिए, क्योंकि यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है। तो हर मतलब यहाँ पे कितने आइटरेशन हुए? 4 आइटरेशन हुए। तो दिस वॉज ऑल अबाउट लूप्स इन कॉटलिन। अब दूसरे दो जो डेटा स्ट्रक्चर बचे थे हम वो देखते हैं, लिस्ट और मैप्स। पहले लिस्ट को देखते हैं। लिस्ट को बनाने का भी सिंटैक्स सेम ही है। अरे की जगह में लिस्ट लिख दूंगा, बस इतना ही डिफरेंस। हो गई लिस्ट। अरे था पहले, अब लिस्ट हुआ। अब अरे और लिस्ट में डिफरेंस क्या है? जबकि सिर्फ नाम ही हमने बदले। तो अरे की जो साइज होती है ना वो फिक्स्ड होती है, और लिस्ट की साइज फिक्स नहीं होती। मतलब अगर अरे में आपने 5 एलिमेंट है और उसमें से कुछ एलिमेंट उड़ा दिए, तो साइज वो 5 एलिमेंट की ही रहेगी, और साइज जो स्पेस है ना आपकी मेमोरी में वो वेस्ट हो जाएगी। लिस्ट का ऐसा नहीं रहता। लिस्ट एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स, मतलब अगर उसके अंदर 4 एलिमेंट है तो 4 की साइज ही कंज्यूम करेगा, ज्यादा नहीं करेगा। बट अरे की साइज जो होती है ना इम्यूटेबल होती है, मतलब चेंज नहीं कर सकते साइज को। एक बार आपने डिफाइन कर दिए अरे, साइज एंड तक उतनी ही रहेगी। बट लिस्ट की साइज डायनेमिकली चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू नंबर्स ऑफ एलिमेंट इनसाइड ऑफ इट। तो ये है लिस्ट। डिफरेंस समझ गए होंगे आई होप आप लोग। द साइज ऑफ अरे इज इम्यूटेबल एंड द साइज ऑफ लिस्ट इज म्यूटेबल। अब लिस्ट में बनाया हुआ ये सिंपल लिस्ट है। सिंपल लिस्ट इज रीड ओनली, मतलब अगर एक बार आपने डिफाइन कर दिए तो ये चेंज नहीं हो सकती। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जिससे ये लिस्ट चेंज हो, तो उसके लिए मैं सिर्फ एक सिंपल कीवर्ड लिखूंगा, म्यूटेबल। लिस्ट के पहले लिखूंगा। दिस मेक्स द लिस्ट म्यूटेबल। पहले जो लिस्ट थी ना ये वाली, ये म्यूटेबल नहीं है, मतलब चेंज नहीं कर सकते आपको। एक बार डिफाइन किए, 4 एलिमेंट डाल दिया, उसके बाद मैं कोई एलिमेंट को निकाल भी नहीं सकता, कोई एलिमेंट को एलिमेंट की पोजीशन नहीं चेंज कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। बट मैं अगर चाहता हूं कि लिस्ट को चेंज करना चाहता हूं, तो मैं म्यूटेबल कीवर्ड का यूज करता हूं। म्यूटेबल, कैपिटल एल। ये हो गई म्यूटेबल लिस्ट। लिस्ट ऑफ और म्यूटेबल लिस्ट ऑफ में क्या डिफरेंस है? लिस्ट जो एक बार बन गई चेंज नहीं होती, म्यूटेबल लिस्ट चेंज हो सकती है। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन सिंपल लिस्ट एंड म्यूटेबल लिस्ट। अब अगर मेरे को साइज प्रिंट करनी है लिस्ट की, तो मैं क्या करूंगा? प्रिंट एल एन नेम डॉट साइज। देखो 4 प्रिंट हुआ। क्यों 4 प्रिंट हुआ? क्योंकि इसके अंदर 4 एलिमेंट्स है। अरे के लिए भी सेम ही सिंटैक्स है। अरे का नाम डॉट साइज, तो अरे की साइज प्रिंट हो गया। अभी मैं यहाँ पे 5 कोई और एक नाम एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ, तो 5 प्रिंट होगा। देखो 5 प्रिंट हुआ। कोई नाम हटा देता हूँ, मतलब अभी 4 ही एलिमेंट थे इसमें, तो फिर 4 प्रिंट होगा। देखो 4 प्रिंट हुआ। तो दिस वाज लिस्ट, म्यूटेबल लिस्ट। मोर स्पेसिफिकली याद रखना है आपको, म्यूटेबल लिस्ट। अगर ऐसा करते हो, सिर्फ लिस्ट ऑफ डिक्लेयर करते हो, तो आपकी लिस्ट एक बार बन गई ना, चेंज कभी नहीं होगी। तो अगर आप चेंज करना चाहते हो लिस्ट को, तब आप उसको म्यूटेबल बनाते हो। अब ये लिस्ट और म्यूटेबल लिस्ट कब यूज करना है? अगर आप चाहते हो एक लिस्ट बनाई और कोई उसको चेंज ना कर सके, आपका यूजर चेंज ना कर सके, तब आप बनाओगे सिंपल लिस्ट। और चाहते हो अब अगर यूजर उसको चेंज कर सके किसी तरह से, तो आप बनाओगे म्यूटेबल लिस्ट। अब आते हैं मैप की तरफ, और एक डेटा स्ट्रक्चर है, उसके बाद हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट पे जाते हैं। सो दिस इज मैप। सिंटैक्स सेम है, वैल या वैर कीवर्ड, मैप का नाम मैप हो। अब अंदर चेंजेस है। मैप स्टोर्स की वैल्यू पेयर्स। की वैल्यू पेयर्स मतलब एक की रहेगी और उसकी एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू रहेगी। एक की रहेगी, उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू रहेगी। और ऐसी बहुत सारी की वैल्यू पेयर्स एक मैप के अंदर हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं। सो मैप स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्केलेबल एप्लीकेशंस में। जो बड़े बड़े एप्लीकेशंस है ना, उसमें चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। यस, सिमिलर टू डिक्शनरीज इन पाइथन। यू आर राइट श्रेयस। इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी कॉल इट डिक्शनरी। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसका नाम जो है ना वो अलग होता है, और जो इसको डिक्लेयर करने का सिंटैक्स होता है वो भी अलग होता है। पाइथन में एक कॉटलिन के अंदर हम 2 कीवर्ड यूज कर सकते हैं टू मैप ईच की टू इट्स ओन वैल्यू, करस्पॉन्डिंग वैल्यू। 2 कीवर्ड यूज करेंगे। अब देखते हैं कैसे करते हैं इसको।
मैं एक मैप बनाता हूँ, उसके अंदर हमारी कीज होगी प्लैनेट्स के नाम, और वैल्यू होगी उनकी सोलर सिस्टम के अंदर उनकी पोजीशन। देखो, मैप ऑफ। अब हमारे सोलर सिस्टम में पहला प्लैनेट है शायद मर्क्यूरी। मर्क्यूरी 2 1। अब हर एलिमेंट को आप सेपरेट करते हैं कॉमा की मदद से। देखो यहाँ पे कॉमा है, कॉमा, फिर आता है वीनस 2 2, फिर आता है अर्थ 2 3, फिर आता है मार्स 2 4। So this is map. Each key has its corresponding value. In this case, it is name of the value is the key, and its corresponding value जो वैल्यू है जिसको हम जो आंसर है वो है 1 2 3 4, यानी पोजीशन ऑफ ईच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अब इसकी जो साइज प्रिंट करनी है तो सिंपल सिंटैक्स है, वही सेम सिंटैक्स है, प्रिंट एलन मैप। यहाँ पे इसको प्लैनेट्स कर देता हूँ नेम की। कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैप का नाम बदल रहा हूँ। देखो 4 प्रिंट हुआ, क्यों? क्योंकि इसके अंदर 4 पैर, आपको 8 वैल्यूज दिख रही होंगी बट 4 पैर। ये एक पैर है, ये दूसरा पैर है, ये दूसरा पैर है, ये तीसरा पैर है, ये चौथा पैर है। 4 pairs of keys and values, 4 pairs of keys and values. That's the reason why if we execute this particular statement planets dot size, it returns 4 because there are 4 elements. अगर मैं इसके अंदर और एक एलिमेंट ऐड करता हूँ, थिया। थिया भी एक प्लेनेट है जो रिसेंटली डिस्कवर हुआ था, उसकी पोजीशन क्या पता नहीं। ये 5 प्रिंट करेगा क्योंकि इसमें हमने एक और एक एलिमेंट ऐड कर दिए। अब ये जो वैल्यूज है वो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? वी एक्सेस दिस वैल्यू यूजिंग देयर की। थिंक ऑफ की एज द लॉक, थिंक ऑफ दिस वैल्यूज as the lock and the keys which is used to unlock that lock. So ये जो name of planet in this case are the keys, and 1 2 3 4 this position, their position are the lock, and we use this key to unlock the lock. That is to get the answer. How we will access these values? Through their keys. So basically मैं यहाँ लिखूंगा सिर्फ सेम सिंटैक्स है अरे जैसा, कीज पास करूंगा मार्स। देखो 4 प्रिंट हुआ, क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि मार्स का जो आंसर है वो है 4, जो मार्स की वैल्यू है वो है 4। अब अगर मैं थिया कर देता हूँ तो 13 प्रिंट करे। थिया देखो, थिया का आंसर है 13, थिया की वैल्यू है 13, थिया एक की है और उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 13, इसने 13 प्रिंट किया। दिस इज हाउ यू एक्सेस की वैल्यूज ऑफ मैप थ्रू देयर कीज। सो लेट्स मूव ऑन नाउ। अब आते हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट की तरफ, जो एक्चुअल पर्पज है हमारे वर्कशॉप का। अब तक जो हम सीख रहे थे ना, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जिसका नाम है कॉटलिन। कॉटलिन इज एन हाई लेवल स्टैटिस्टिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू डेवलप एंड्रॉइड एप्लीकेशंस। पहले जावा यूज होती थी, फिर कुछ 2016 के आसपास कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, सो गूगल केम अप विद देयर ओन लैंग्वेज नोन एज कॉटलिन। सो कॉटलिन, इफ समवन आस्क्स यू, it is developed by Google only. Android operating system is also developed by Google. Android operating system was released in 2006, and Kotlin was released somewhere around 2016. I don't know the exact year. Maybe I am wrong, but I think it was somewhere around 2016-15 only. So, what is Android Studio? अभी आपको Kotlin आ गई,
आप एक्चुअल में एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलप कैसे करोगे? You need some text editor, you need some development environment, you need something to where you will code in order to develop your Android applications. अब बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर है ऑलरेडी मार्केट में, विजुअल स्टूडियो है, सबलाइम टेक्स्ट है, बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर्स है, बट उसमें हम डेडिकेटेड एंड्रॉइड डेवलपमेंट नहीं कर सकते, उसमें वो टूल्स अवेलेबल ही नहीं जिससे आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर सको। अगर आप करना भी चाहते हो तो जो टूल्स होते हैं ना, जो एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर होते हैं, तो आपको विजुअल स्टूडियो में नहीं मिलेंगे। सिर्फ एक सिंपल डेवलपमेंट करोगे, बाकी कुछ नहीं कर पाओगे आप विजुअल स्टूडियो के केस में। So Android Studio is an integrated development environment, IDE, integrated development environment, which is used to develop Android applications specifically designed by Google फॉर डेवलप एंड्रॉइड डेवलपमेंट। अभी इस सॉफ्टवेयर को, एंड्रॉइड स्टूडियो को इंटेलिजेंट आइडिया ने बनाया था, और इसको इसके ऊपर वही सॉफ्टवेयर एक बेस था, उसके ऊपर एंड्रॉइड स्टूडियो बना जो हम यूज करते हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए। सो इसको कैसे डाउनलोड करना है? सिंपली जस्ट गो टू गूगल एंड टाइप एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड, ये वाली लिंक है, डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो एंड ऐप एंड टूल्स, इस पे क्लिक करना है। देखो यहाँ पे आपको बटन दिख रहा होगा, डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो हैजहॉग। ये हैजहॉग वर्जन का नाम है, जैसे हर एंड्रॉइड वर्जन का एक नाम होता है। लेटेस्ट है 14, जिसका नाम है अपसाइड कपकेक, ऐसा ही कुछ नाम है। तो ये एंड्रॉइड स्टूडियो वर्जन के नाम का नाम है हैजहॉग। पहले शायद जिराफ यूज होता था, उसके पहले डॉल्फिन था, अब हैजहॉग है। एनिमल्स के नाम पे नाम होता है एंड्रॉइड स्टूडियो का। जैसे एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम पेस्ट्रीज और केक के चॉकलेट्स के ऊपर होता है, जैसे मार्शमेलो, जेली बीन, लॉलीपॉप, अपसाइड डाउन केक, वो सब है। तो एंड्रॉइड स्टूडियो का नाम, इस वाले वर्जन का नाम है हैजहॉग। यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के पहले आपको इसके सिस्टम रिक्वायरमेंट देखना है। मैं नहीं चाहता कि आपका सिस्टम हैंग हो जाए, तो आप देख लो कि आपका सिस्टम एंड्रॉइड स्टूडियो को रन कर सकता है नहीं। सिंपली टाइप करो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पे आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट्स मिल जाएंगे। विंडोज की रिक्वायरमेंट्स, हाँ विंडोज, आ गई तो गलत बटन पे क्लिक किया मैंने शायद। हाँ ये रहा। अब अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो तो ये आपकी रिक्वायरमेंट, आपका सिस्टम जो लैपटॉप है, पीसी है, वो सेटिस्फाई करना चाहिए, वरना एंड्रॉइड स्टूडियो चलेगा बट आपका सिस्टम ही हैंग हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। मतलब आप कुछ डेवलपमेंट करने जाओगे ना, आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, गूगल हैज रिकमेंडेड सम सिस्टम रिक्वायरमेंट। तो पहला है विंडोज, आप इसको लिनक्स और मैक ओएस पे भी चला सकते हो, नो इश्यूज। इस ये वाली लाइन को इग्नोर करो आप। सीपीयू पे आते, सेकेंड जनरेशन इंटेल और कोर या न्यूअर, मतलब सेकेंड जनरेशन इंटेल कोर या उससे ज्यादा होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रैम, रैम मिनिमम 8 GB होना ही चाहिए। अगर 8 GB से कम है तो आपका सिस्टम पक्का हैंग होगा। और आपको आपके डिस्क पे एसएसडी या एसएसडी जो भी यूज कर रहे हो उसमें 8 GB स्टोरेज अवेलेबल होनी चाहिए। और रिसोल्यूशन कुछ भी चलेगा, आप इससे कम रिसोल्यूशन है तो भी एंड्रॉइड स्टूडियो चलता है, बट गूगल रेकमेंड्स 800 पिक्सल मिनिमम स्क्रीन रिसोल्यूशन। अगर आपका 640 है एकदम लोएस्ट, या 480 है, तो भी आपका एंड्रॉइड स्टूडियो चलेगा। तो मैंने अभी बता दिया आपको एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड कैसे करना है, और आपके सिस्टम रिक्वायर को पहले देखना, उसके बाद ही एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड करो। वरना अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो रन करोगे तो इश्यूज आ सकते हैं आपके कंप्यूटर में। सो एंड्रॉइड स्टूडियो इज ऑफिशियली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर गूगल्स एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अब मैं अपना एंड्रॉइड स्टूडियो खोलता हूँ, ये मेरा नीचे ही है, हैजहॉग देखो लिखा हुआ है। ये मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो खुल गया। ये वेलकम स्क्रीन सब में पहले ओपन होगी, आप जब करोगे तब वेलकम स्क्रीन ही ओपन होगी। ये मेरे सारे पुराने एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो मैं पहले बनाया था वो सब है, उसको आप इग्नोर करो। आपको क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट पे। यहाँ पे आपको 3 बटन दिख रहे हैं, न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट या ओपन। ओपन से आप पुराने प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हो, न्यू प्रोजेक्ट से आप फ्लटर प्रोजेक्ट बना सकते हो, जो एक अलग फ्रेमवर्क है जिसका वर्कशॉप भी हम शायद फेब में लेंगे। और अभी उसको इग्नोर करो, ये वाले बटन को, न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट को, हमें न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना। अगर आप में फ्लटर इंस्टॉल नहीं है तो ये आपको आपके सिस्टम, ये जो आपके केस में बटन आएगा ही नहीं। तो न्यू प्रोजेक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये विंडो खुलती है।
आपको एम्प्टी एक्टिविटी पे सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट दबाना है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिखेंगे। आप अब हम ऐप बना रहे हैं मोबाइल फोन के लिए, आप ऐप बना सकते हो कार्स के लिए, आप ऐप बना सकते हो टीवी के लिए। अब आपने सुना होगा ना, एंड्रॉइड टीवी का नाम तो सुना होगा, तो उसके भी ऐप आप एंड्रॉइड स्टूडियो से बना सकते हो। आप ऐप बना सकते हो वॉचेस के लिए, जो घड़ी यूज करते हैं ना हम, सैमसंग की या कोई भी ब्रांड की, उसमें एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। एप्पल की यूज कर रहे हो तो उसमें एंड्रॉइड नहीं चलता, बट कोई एप्पल के अलावा कोई और वॉच यूज कर रहे हो तो उसमें एंड्रॉइड चलता है। तो आप एंड्रॉइड स्टूडियो की मदद से घड़ी के लिए अपने, अगर आपकी खुद की घड़ी है, स्मार्ट वॉच है, तो उसके लिए भी आप ऐप बना सकते हो। मैं हम अब बना रहे फोन के लिए, तो फोन पे क्लिक करना है, एम्प्टी एक्टिविटी पे क्लिक करना है और नेक्स्ट दबाना है। अभी यहाँ पे आपको एंड्रॉइड अपने ऐप का नाम देना है, तो मैं यहाँ दूंगा माई फर्स्ट एंड्रॉइड ऐप। बाकी को वैसे के वैसा ही रखो, सिर्फ नाम बदलना है बस। फिनिश दबाओ। अब ये थोड़ा टाइम लेगा नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए। फुल स्क्रीन कर देता हूँ। आपको अगर कुछ अभी समझ नहीं आ रहा है, नो इश्यू, मैं सब समझाऊंगा। कम से कम 5 मिनट मिनिमम ये ले सकता है। ये बेसिकली कर क्या रहा है, जो भी फाइल्स रिक्वायर्ड है एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए, वो इंटरनेट से डाउनलोड कर रहा है। इन दिस केस इट इज 128 MB। आपके वाईफाई की स्पीड पे डिपेंड करेगा कितने फास्ट ये डाउनलोड कर रहा है। New asks, this language we are doing in Kotlin. But if you want to learn Java, I won't stop you. आप जावा भी सीख सकते हो। आपने बहुत बार लोगों से सुना होगा जावा इज डाइंग या जावा इज डेड। इट्स नथिंग लाइक दैट, यू कैन डेफिनेटली लर्न जावा, बट we are doing development of Android applications specifically in Kotlin because Google recommends it, and it has more features and advantages over Java. Now it is importing all those downloaded files. Let's wait. लाइक आई सेड, इस आप जब भी पहली बार प्रोजेक्ट बनाओगे तो प्रोजेक्ट को सेटअप होने के लिए टाइम लगेगा, तो आपको पेशेंट रहना है। If you have any doubt, you can ask me now. By that time, this will finish setting up. If you want to open your mouth, you can do it or simply type the message in the chat. Oh, yes, yes. New, I will definitely explain the code displayed on the screen. Just let it finish up. I told you guys, it takes time. Minimum, maximum, it can take up to 5 minutes. Whenever you will create a new application, it will definitely take a lot of time. Further, it won't. Whenever you open the existing Android application, it won't take a lot of time. This is quite similar to React. When you create a new React application using the CRA command, it downloads all the necessary files, right, from the internet. This is doing the same thing. So you can see how much time it has already taken. 3 minutes and 39 seconds. Okay. Now it has completed its setting up.
You can see this message: build successful in 3 minutes and 3 seconds. Let it update all the indexes. Okay. So it's done. It has finished setting up. Everything is done. Okay. So whenever you create a first Android application and everything is downloaded successfully, hopefully you won't get any error. There are very high chances you will get some error, but in my case, we did not get any error. So that was the good news. It saved us a lot of time because in order to solve those errors, it will consume a lot of time. So this is your Android Studio. Whatever you seeing on this screen is Android Studio. This right here is the main menu option. You get multiple options here. Right now we are not concerned with it, but you get file here. You can create new project. You change the settings, local history. Also do version control. You can, if you have any error, then you can repair the Android development, Android Studio IDE, which is Android Studio in this case, and lots of configuration and options are available here. From here, this is a drop down. From here, you can select your Android application that are already on your system. So I named it previously my first Android app. So it says here my first Android app. This is the name of my app. If I click here, I get all the apps that are already available on my system. This is the version control. I won't go deep into this. I will give you simple definition. Version control allows you to track changes in your file. Simple as that. Using Git. Git is a tool. If you are a developer, you will definitely use it. It allows you to track changes in your file. So if you did something and you don't want it, but you saved it, then you can roll back. Rather than pressing Control Z, you can roll back up to a month, a year. Rollback allows you to take the backup of your entire code. So that is version control. It is a concept of software engineering. So this is resource manager. This is this is where you will see all the logs. Logs means what's happening in the background basically. You can ignore it. If you get any error, it will come here highlighted in red. If you don't get any error first time, it will say build successful. This is a logcat. When we will connect to the device to test our application, that's when this is used. No device connected, it shows because I haven't connected any device. These are problem. If there are any errors in your code, it will show here. These are app quality insights. This is basically used to test your app. So it will tell you in what user phone your app is crashing. Sometimes when you open your app, it automatically shuts down. Why does that happen? That is called apps crashing. All that crashing and all that you can test here. This is mainly used for profiling. How fast is your app? How optimized is your app? How efficient is your app? All that is shown here. We will won't see this because we don't have enough time. This is your terminal. This is your inbuilt terminal. It is uses a bash script. So here you can write various type of Linux command. If you know about operating system, you can write anything here like sudo. This is inbuilt terminal. It is same as your exterior terminal. This one. This is your exterior explicit terminal. This same thing is inbuilt inside your Android Studio. And this is version control. Okay, here you will get all the notifications. Right now, I don't have any notification. This is Gradle. Yes. What is Gradle? Think of it as your supervisor. You write the code and you run it. What happens in the background, all of that is managed by a tool known as Gradle. Think of it as your manager who converts your code into the Android app that is installed on your system. Simple as that.
converts your source code, the code that you write, into the Android application. This is Gradle. And this was what, when we created first our first step, it downloaded what? Gradle. You might have seen there. It was downloading Gradle. So basically it was downloading a tool that converts our code into Android app. Now this conversion goes through various stages. We won't go deep into that, but think of it as your manager, as your assistant, whatever you want to think of it. It converts your code into your apps, automates automate the process of building and publishing apps. Okay, so this is Gradle. This is your device manager. Now here we come across concept of emulator. Now what does emulator does? Emulator basically simulates your phone but virtually. So rather than testing on your own Android phone, you can test it inside your Windows operating system. And how does that happen? Through something known as emulator. Emulator allows you to basically replicate your Android phone inside your computer. You might have seen those YouTubers who play PUBG in their computers, BGMI in their computers. How do they do that? They do that using emulators that basically emulates the entire Android operating system, but on computer. You can do this on Linux, Windows, and Mac OS. All those three kind of system. So basically, why emulator is used in Android development? It is mainly used to test your applications. So you did some code. Now you want to check if that code is correct, what changes you need to make, if there are any errors. So rather than using the actual Android device, you use emulator. So all the emulators that are installed on your system will show right here. Right now, I only have one. The name of that emulator is Arman, and the Android operating version of Android operating is it's using is 14. It is not yet released. It will be released, I think, in April. And the name of that version is Upside Down King. Yes, Upside Down King is the name. And these are running devices. Apart from testing your app on emulator, you can also use test your apps on the real phone using either Wi-Fi pairing or through USB debugging. So basically, you connect the USB to your computer and to your phone, and rather than testing it on your emulator, you can test it on your actual physical devices. Now this is recommended if you don't have enough RAM or CPU power. So rather than running the emulator on your computer itself, I really recommend to test the and whatever Android app you will make on your phones. So it will consume less RAM and your system won't get hanged if it has low RAM. So here it shows the list of the emulator, and here it shows the list of connected devices. So whatever device you will connect to your computer through USB, Android device, only Android device, it will show here. Ignore these three. These are GitHub Copilot. These are AI, just like GPT and all. So it Arman is selected, which means whenever I click on this button, this play button, our code will be converted into app, Android app by our supervisor or manager, which is Gradle, and it will be installed on my emulator. The name of my emulator is Arma. It said right here. See, Arma. If you want it, if you have connected your device, and if you want that app to be installed on your device, you will simply click here, and you will choose the name of your device, whatever it might be. So in that case, this app which will be the code which will be converted into the app by our supervisor, which is Gradle, will be installed on your system, on your mobile phone, actual mobile phone. And if you don't want to use USB, you can also connect your phone to the Android Studio through Wi-Fi. But the condition is your computer and your phone must be connected to the same Wi-Fi. If your phone is using mobile data and not connected to the Wi-Fi, then this feature won't work. This feature was released recently. This is done. Now let's come here. This is our app directory.
this is this is our app directory. So everything you will code, everything related to your app will be inside of this folder. You can also change the specifications, the view of this app by clicking right here. You can choose project. So it will be what it does, it changes the view of your directory. I really recommend doing your Android development using the Android type of app directory. So whatever code you will write will be inside this Kotlin plus Java folder. This folder. This folder. The one I just clicked right now. Whatever you will code, जो भी आप कोड लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, सारा कोड आप Kotlin प्लस जावा फोल्डर के अंदर ही होगा. इसके अगर बाहर रख दिए तो कोड रन नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, इग्नोर हो जाएगा. अगर आपको कोड इसके बाहर रखना है तो आपको अपने ऐप को मॉड्यूल्स में डिवाइड करना पड़ेगा. हर ऐप को आपको मॉड्यूल्स में डिवाइड करना पड़ेगा और वो मॉड्यूल भी इधर ही होंगे. मॉड्यूल्स के बारे में हम देखेंगे बाद में, कैसे ऐप को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं. मतलब क्या करेंगे, हम एक ऐप को अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड करेंगे और जब रन करेंगे ना तो वो सारे मॉड्यूल एक साथ कंबाइन हो जाएंगे और आपके डिवाइस के अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे. तो ये काम क्यों करते हैं हम, ताकि हमारा जो कोड है ना उसको हम बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट. यहाँ आप देखोगे ना तो यहाँ कहीं तो ऑप्शन आता है न्यू, हाँ, न्यू मॉड्यूल का. एक क्लिक करके आप नया मॉड्यूल बना सकते हैं. एक एग्जिस्टिंग मॉड्यूल आप इंपोर्ट भी कर सकते हो. तो आप जो भी कोड लिखेंगे वो होगा Kotlin प्लस जावा फोल्डर के अंदर. अभी हम Kotlin लैंग्वेज यूज कर रहे हैं. आप जावा भी यूज कर सकते हो, इसके लिए वहां लिखा हुआ है Kotlin प्लस जावा. जावा पहले यूज होती थी बट अभी भी यूज होती है. इट स्टिल सपोर्ट्स एंड्रॉइड डेवलपमेंट बट गूगल रेकमेंड्स Kotlin एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी आर लर्निंग Kotlin. इसके नीचे और दो फोल्डर है. ये टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज होते हैं. एंड्रॉइड डेवलपमेंट में दो टाइप की टेस्टिंग होती है, एक इंस्ट्रूमेंटेड टेस्टिंग और एक यूनिट टेस्टिंग. यूनिट टेस्टिंग मतलब हर एक चीज को आप थॉरली टेस्ट करते हो, हर फंक्शन को, हर क्लास को आप थॉरली टेस्ट करते हो, उसको यूनिट टेस्टिंग बोलते हैं. टेस्टिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है और एक पूरा करियर भी है. आप आगे जाके सॉफ्टवेयर टेस्टर भी बन सकते हो. सॉफ्टवेयर टेस्टर का काम होता है मेकिंग श्योर दैट ऐप इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स. अब अगर जब मुंबई यूनिवर्सिटी के अगर आप स्टूडेंट हो तो आप जब 5th सेमेस्टर में आओगे तब आपको एक सब्जेक्ट रहेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके, उसमें आप टेस्टिंग के बारे में डीप में पढ़ोगे. फिर नीचे है रेस फोल्डर. रेस स्टैंड्स फॉर रिसोर्सेस, शॉर्ट फॉर्म है रेस. इसके अंदर बहुत सारे सब फोल्डर्स होते हैं. देखो ड्रॉएबल है, मिप मैप है, वैल्यूज है और एक्सएमएल. ड्रॉएबल के अंदर आपके सारे एसेट्स होते हैं. आप ऐप के अंदर इमेजेस वगैरह जो भी यूज करते हो वो सब ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर आएगी. आपका ऐप का आइकॉन, आपके ऐप के अंदर जो भी इमेज यूज किए, कुछ भी वीडियोस यूज किए, कुछ भी, वो सब आपका ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर आते हैं. मिप मैप फोल्डर के अंदर आपके आइकॉन के अलग अलग टाइप के डेंसिटीज होती है. अभी डेंसिटीज मतलब बेसिकली रिसोल्यूशन. HDPI मतलब लोवेस्ट डेंसिटी. आपको फर्क दिखेगा. देखो मैं जब HDPI पे क्लिक करता हूँ देखो इसका रिसोल्यूशन जो है कितना कम. अब मैं XXX HDPI पे क्लिक करूंगा तो देखो इसका रिसोल्यूशन, देखो डिफरेंस आपको दिख रहा होगा. रिसोल्यूशन में फर्क आता है. पिक्सल्स को, रिसोल्यूशन को हम एंड्रॉइड के कॉन्टेक्स्ट में डेंसिटी बोलते हैं. इतना ही डिफरेंस है. तो यहाँ पे अलग अलग डेंसिटीज के आइकन्स है. अभी जब नया ऐप बनाते हो तो ये जो दिख रहा है ना आपको स्क्रीन के ऊपर, ये आपका डिफॉल्ट आइकन रहता है. इसको आप चेंज कर सकते हैं, हम देखेंगे कैसे चेंज करना है. और यहाँ पे आते हैं वैल्यूज. यहाँ पे बहुत कलर आप डिफाइन कर सकते हैं जो आपको ऐप के अंदर यूज करना है और बार बार यूज करना है. तो बार बार आपको ये हेक्स कोड याद रखने से अच्छा आप एक नया कलर यहाँ पे डिफाइन करोगे और उसको यूज करोगे. अब ये क्या है, ये है एक्सएमएल. पहले एंड्रॉइड डेवलपमेंट में एक्सएमएल यूज होता था ऐप का यूआई बनाने के लिए, जेटपैक कंपोज आने के पहले. अभी भी यूज होता है और अभी भी आप यूज कर सकते हो, बट गूगल रेकमेंड जेटपैक कंपोज, इसीलिए हम जेटपैक कंपोज सीखेंगे और एक्सएमएल नहीं सीखेंगे. तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं. यहाँ पे स्ट्रिंग्स होते हैं और ये थीम्स होता है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं. सब एक्सएमएल. हमारे यहाँ पे वैल्यूज के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग्स में काम रहेगा. यहाँ पे आपको अपने ऐप का नाम दिख रहा होगा, माई फर्स्ट एंड्रॉइड ऐप. ऐप का नाम अगर आपको बदलना है तो यही बदलना है. मैं सेकेंड एंड्रॉइड ऐप करना चाहता हूँ अपने ऐप का नाम,
तो मैं यही करूंगा। तो ऐसे आप अपने ऐप का नाम बदल सकते हो। आपको रेस फोल्डर में जाना है, रेस फोल्डर में आके आपको वैल्यूज में जाना है, स्ट्रिंग्स में जाना है, यहाँ के आपके ऐप का नाम बदल सकते हो। अब आते हैं मैनिफेस्ट में। मैनिफेस्ट क्या होता है? मैनिफेस्ट ये भी XML है। मैनिफेस्ट इज बेसिकली डिफाइंस द मेटा डेटा अबाउट योर एप्लीकेशन। सब मेटा डेटा क्या होता है? मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट योर डेटा। अगर एक इमेज है तो उसका मेटा डेटा क्या हो गया? वो इमेज कब बनी थी, वो इमेज की कब क्या साइज है, वो इमेज को कौन कौन सी यूजर एक्सेस कर सकते हैं, वो इमेज का क्या रिसोल्यूशन है, वो हो गया एक इमेज का मेटा डेटा। तो वैसे ही ऐप का भी मेटा डेटा होता है, और वो मेटा डेटा मैनिफेस्ट एंड्रॉइड डॉट मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर स्टोर होता है। तो ये है अपने ऐप का मेटा डेटा, जो भी मैंने हाईलाइट किया वो। और ये है एक्टिविटीज। अब एक्टिविटीज क्या होती है? जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, अभी आप गूगल मीट से जो मीटिंग आप फोन पे अगर अटेंड कर रहे हो, तो जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एक टाइम पे, वो एक एक्टिविटी होती है। जो भी आप स्क्रीन के ऊपर एक टाइम पे देख रहे होते हो ना, वो एक्टिविटी होती है। उसका नाम ही होता है एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब जो भी आप इंटरफेस, जो जिससे आप इंटरैक्ट कर रहे हो, वो होता है एक्टिविटी। एंड्रॉइड के कॉन्टेक्स्ट में इसको हम एक्टिविटी बोलते हैं। तो हमारे पास फिलहाल एक ही एक्टिविटी है, तो इसीलिए यहाँ पे एक ही एक्टिविटी है। अगर और एक्टिविटीज होती, समझो मैंने एक बटन पे क्लिक हुआ किया और स्क्रीन चेंज हो गई, मतलब जो पहले दिख रहा था वो कुछ अब नया ही दिख रहा है, तो मतलब एक्टिविटी चेंज हुई। बटन पे क्लिक करके जैसे आप इंस्टाग्राम में नीचे टैब्स चेंज करते हो ना, क्या चेंज हो रहा होता है? एक्टिविटी चेंज हो रहा होता है। होम पेज पे कुछ और दिखता है और प्रोफाइल पेज पे कुछ और दिखता है। क्यों? होम पेज की जो एक्टिविटी है वो अलग है, प्रोफाइल पेज की जो एक्टिविटी है वो अलग है। इसके लिए आपको इसको अलग अलग ये एक्टिविटीज है। आपको एक टाइम पे एक इंस्टेंस में जो भी स्क्रीन पे दिखता है वो एक एक्टिविटी होती है एंड्रॉइड के केस में। तो फिलहाल अपने पास एक ही एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी का नाम है मेन एक्टिविटी। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक ही एक्टिविटी का टैग दिख रहा है। अब XML HTML जैसा ही होती है, इसके अंदर टैग्स होते हैं। तो एक्टिविटी जो डिफाइन करते हैं मैप के अंदर, उसको यहाँ लिखना जरूरी होता है, ताकि ऐप को पता रहे कि उसके अंदर कितनी एक्टिविटीज है। मैनिफेस्ट फाइल का पर्पज यही होता है, इट कंटेन्स द मेटा डेटा अबाउट योर एप्लीकेशन। तो इसके अंदर कितनी एक्टिविटीज है वो भी आपको इसकी लिस्ट यहाँ पे बनानी होती है। ऑटोमेटिक बन जाती है, बट कभी कभी नहीं बनी तो आपको यहाँ पे आके बनाना पड़ता है। अब ये मेन एक्टिविटी नाम है एक्सपोर्टेड, इसका लेबल है, मतलब एक्टिविटी का एक लेबल है। इसको हटा देंगे तो भी चलेगा, एक्सपोर्टेड को हटा देंगे तो भी चलेगा। अब थीम, इसको रखते हैं। हम्म। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, तो हम सिंपली आपका जो कर्सर है इसके ऊपर होवर करो, आपको लिख के दिख जाएगा कि इस एट्रीब्यूट का काम क्या है। अलाउ बैकअप में अब समझ में नहीं आ रहा तो सिर्फ आप होवर करो, तो उस पर आपको एक डॉक्यूमेंटेशन आएगा, उस पर आपको दिख जाएगा कि ये अलाउ बैकअप एक्चुअल में करता क्या है। फुल बैकअप, कॉन्टैक्ट, आइकॉन, ये सब आपको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो सिंपली उसके ऊपर होवर करो। देखो यहाँ पे आपको पूरा आंसर आपका मिल जाएगा, आपका सारा कंफ्यूजन सॉल्व हो जाएगा। तो उसके केस में नहीं आएगा। मेक श्योर दैट इट एंड्रॉइड ही है यहाँ पे स्टार्ट में। टूल्स के आगे टारगेट एपीआई लिखा हुआ है, उसके ऊपर अगर मैं होवर करता हूँ कुछ नहीं आ रहा। देखो, क्योंकि इसका डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं है आईडीई के अंदर। तो वैसे ही एक्टिविटी टैग हो गया, उसका नाम है एक्टिविटी। लेबल की जरूरत नहीं, मैंने हटा दिया। यहाँ पे ये लेबल जो यहाँ पे है ना, ये एंड्रॉइड का नाम है, इसको आप हटा नहीं सकते, वरना आप जो ऐप इंस्टॉल करोगे उसका वहां पे नाम लिख के ही नहीं आएगा, या फिर जब आप ऐप को रन करोगे तब शायद एरर दे दो। यहाँ पे डेवलपमेंट के टाइम एरर नहीं आ रहा, बट रन करोगे ना तब पक्का एरर आएगा। और ये थीम है, आप देखो फोन में नाइट मोड, डे मोड, लाइट मोड, जो भी उसमें उसके बिटवीन स्विच करते हैं, वो क्या होता है? वो होता है थीम। ये जो टैग है जिसको मैंने हाईलाइट किया, वो बेसिकली हर एक्टिविटी का थीम को डिफाइन करता है। और ये थीम डिक्लेयर होता है वैल्यूज के स्टाइल्स के अंदर, थीम्स के अंदर, सॉरी स्टाइल्स बोल, थीम्स के अंदर।
थीम्स डॉट एक्सएमएल जो फाइल है ना, उसके अंदर ये थीम्स डिक्लेयर होता है, बट ये एक्सएमएल की केस में, जेटपैक कंपोज के केस में हम वही थीम को यहाँ करते हैं डिक्लेयर, इसके अंदर थीम्स डॉट केटी के अंदर यहाँ पे। ये क्या है मैं बताऊंगा बाद में, बट फिलहाल इतना ध्यान रखो कि हर एक्टिविटी का एक थीम होता है और वो डिफाइन यहाँ पे करना कंपलसरी होता है। अगर इसको हटाओगे अब तो एरर नहीं आ रहा, अब नहीं आएगा, बट रन करोगे ना तब पक्का एरर आएगा। ऐसा कुछ लिख के आएगा, योर एक्टिविटी इज नॉट एसोसिएटेड विद थीम, समथिंग लाइक दैट, कुछ तो एरर आएगा। अभी इंटेंट फिल्टर क्या है? इंटेंट फिल्टर बेसिकली बताता है कि जब आपको पे क्लिक करते हो तो सब में पहले आपको क्या दिखना चाहिए, कौन सी एक्टिविटी सब में पहले यूजर को दिखनी चाहिए। तो ये जो हाईलाइट किया हो ना, ये बेसिकली ऐप को ये बताता है कि सब में पहले एक्टिविटी कौन सी खोलनी। इन दिस केस इट इज मेन एक्टिविटी। अभी इसको हटा के मैं कोई और एक्टिविटी में भी लिख सकता हूँ, तो जिस एक्टिविटी के अंदर लिखूंगा ना मैं, वो अपनी सब में वो एक्टिविटी सब में पहले लॉन्च होगी। सो दिस इज व्हाट दिस इंटेंट फिल्टर डज। अब मैं कभी भी ऐप लॉन्च करूंगा तो सब में पहले मेरी मेन एक्टिविटी लॉन्च होगी। ये था मैनिफेस्ट के बारे में। अब यहाँ नीचे आते हैं ग्रेडल्स में। ऐप फोल्डर्स आई होप समझ में आ गया हो। अब दूसरा फोल्डर है ग्रेडल। ग्रेडल के बारे में मैं क्या बोला था मैंने आपको? इट इज अ मैनेजर दैट बेसिकली कन्वर्ट्स योर कोड इनटू एंड्रॉइड एप्स। जो बेसिक अब राइट लिखोगे कोड, उसको कन्वर्ट करेगा एंड्रॉइड ऐप में। इसका एक बहुत ही डायनामिक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को हम फिलहाल डीप में नहीं जाएंगे इतना, बट अभी ध्यान रखना है, थिंक ऑफ इट एज ए सुपरवाइजर that supervises the process, entire process of converting your code into Android app. मैं जब ग्रेडल के ऊपर क्लिक करूंगा तो बहुत सारी फाइल आएंगी नीचे। देखो देखो इतनी सारी फाइल्स आएंगी। सब में पहले इस फाइल को देखते हैं। अब मैंने पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया मॉड्यूल्स का। हर ऐप के बहुत सारे मॉड्यूल्स हो सकते हैं। तो पूरे ऐप के लिए एक build डॉट ग्रेडल डॉट केटीएस करके फाइल होगी। यहाँ पे लिखा है देखो प्रोजेक्ट। ये एक ग्रेडल फाइल है, ग्रेडल कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, जो पूरे ऐप के लिए एक ही रहेगी और यूनिक रहेगी। और जो इसके नीचे वाली जो ग्रेडल बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल है, वो ये वाली फाइल, ये भी ग्रेडल कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, जो हर मॉड्यूल के लिए यूनिक रहेगी। मतलब 6 मॉड्यूल है आपके ऐप के अंदर, तो 6 ऐसी फाइल आपको दिखेंगी। 10 है तो 10 दिखेंगी। फिलहाल एक ही मॉड्यूल है और वो मॉड्यूल का नाम है ऐप। तो इसीलिए यहाँ पे एक ही मॉड्यूल ग्रेडल फाइल है। जितने भी मॉड्यूल होंगे उतनी ग्रेडल फाइल आपको यहाँ पे दिखेगी। ये प्रोगार्ड रूल्स, यहाँ पे आप कोड को मिनिफाई करते हो। मिनिफाई करना मतलब क्या? कंप्रेस करना, ऑप्टिमाइज करना। मतलब इससे आपकी यहाँ पे रूल्स कुछ लिखते हो आप, जिससे आपकी ऐप की साइज कम होती है। आप नहीं, अभी गूगल का एक रूल है, कोई भी ऐप 100 MB के ऊपर नहीं हो सकता, बट आपने ऐप बनाया और वो 110 MB का है, तो आपको कोड को ऑप्टिमाइज करना है, मिनिफाई करना है। तो उसके जो रूल्स है ना, वो आप यहाँ पे लिखते हो। ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज, ग्रेडल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन करता है ये वाली फाइल। इसको आप अभी नहीं समझोगे तो भी कोई इशू नहीं, अगर कभी नहीं समझोगे तो भी कोई इशू नहीं। या और सारी ग्रेडल की फाइल है, ये हर कंप्यूटर के लिए यूनिक रहेगी, जिससे मेरे लिए यूनिक है। यहाँ पे आपको जब भी आप ये ग्रेडल फाइल बनी होगी, ये वाली पर्टिकुलर फाइल, तो उसका जो जो डेट कब बनी वो सब लिख के आ जाएगा यहाँ पे। ये भी हर कंप्यूटर के लिए यूनिक होगी। एसडीके का लोकेशन बताता है। ये एसडीके क्या है मैं बताता हूँ। और ये ग्रेडल की सेटिंग्स है, इसको कुछ टच नहीं करना, कुछ छेड़छाड़ नहीं करना इससे। ठीक, अब मैं ये टॉप लेवल प्रोजेक्ट की जो ग्रेडल फाइल है उसके बारे में बताता हूँ। तो ये 2 प्लगइन्स है। प्लगइन्स का काम होता है ग्रेडल की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करना। अभी यहाँ पे 2 प्लगइन यूज हो रहे हैं। एक है android.application.com और दूसरा है Kotlin। सो बेसिकली पहली जो लाइन जो मैंने सिलेक्ट किया, वो बेसिकली ग्रेडल का वर्जन बता रहा है। हमारा ऐप ग्रेडल का 8.2.1 वर्जन यूज कर रहा है। और वो कहाँ से वर्जन डाउनलोड कर रहा है? ये वाली लोकेशन से। और हमारे ऐप 1.9.0 कॉटलिन वर्जन यूज कर रहा है। और वो कहाँ से डाउनलोड कर रहा है? यहाँ से। और अप्लाई फॉल्स क्या मतलब ये जैसे डाउनलोड कर दिया अप्लाई नहीं करेगा, मतलब यहाँ से अप्लाई नहीं करेगा, हम इसको हर मॉड्यूल से अप्लाई करें। मतलब ये जो यहाँ पे जो 2 है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे हम डाउनलोड कर रहे हैं बेसिकली, और हम यहाँ आगे अप्लाई फॉल्स लिख रहे हैं। तो इसको एक्चुअल में अप्लाई किधर कर रहे हैं?
मॉड्यूल डॉट ग्रेडर, इस वाली फाइल जो हर मॉड्यूल के लिए यूनिक रहेगी। तो यहाँ पे हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। अब नीचे आते हैं, ये आपके एंड्रॉइड स्पेसिफिकेशन है, नेम स्पेस, ये मतलब रूट फोल्डर का नाम, मतलब आप कभी जाओगे ना अपने एंड्रॉइड डॉट डेटा पे, फोल्डर पे क्लिक करोगे आपके माई फाइल्स के अंदर, फोन के माई फाइल्स के अंदर, तो जो आपके नाम की जो डेटा के अंदर जो फोल्डर बनेगा ना, उसका नाम यही रहेगा, com.android.com। अब हर ऐप का ये यूनिक रहता है, अलग होता है। इसके अंदर आपके ऐप का जो डेटा जो भी जनरेट होगा ना, वो स्टोर होता है इस वाले नाम के फोल्डर के अंदर, जो होती है आपके एंड्रॉइड के डेटा के अंदर। एंड्रॉइड पे आप क्लिक करो, उसके अंदर एक डेटा फोल्डर होती है, उस पर क्लिक करो, तो आपको, अगर आपका एंड्रॉइड 11 से पुराना है तो सारे फोल्डर्स दिख जाएंगे। अगर आपका एंड्रॉइड 11 और नया है तो नहीं दिखेंगे, क्योंकि गूगल ने उस चीज को अभी बंद कर दिया, मतलब यूजर अपने डेटा फोल्डर को एक्सेस नहीं कर सकते। अभी कंपाइल एसडीके क्या है, मतलब किस एंड्रॉइड वर्जन तक आप अपना ऐप सपोर्टेड है। 34 मतलब लेटेस्ट वर्जन, एंड्रॉइड 14 का जो नंबर है वो 34 है। 33 करूंगा मतलब एंड्रॉइड 13 हो जाएगा, 32 करूंगा मतलब एंड्रॉइड 12 हो जाएगा। मिनिमम एसडी सेम है, नेम स्पेस और ये एप्लीकेशन आईडी। मिनी के एसडी के मतलब मिनिमम सपोर्ट। अब एंड्रॉइड 29 स्टैंड फॉर एंड्रॉइड 10, मतलब अगर मेरा ऐप जो बनाया मैंने प्ले स्टोर पे डाल दिया, तो ये जो एंड्रॉइड 10 से जो नीचे जो भी यूजर यूज कर रहे हैं ना, वो मेरा ऐप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके ऐप में, उनके मोबाइल में मेरा ऐप सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो कि पुराने एंड्रॉइड के वर्जन भी आपका ऐप सपोर्ट कर सके, तो आपको ये नंबर बदलना है सिर्फ। 21 से नीचे मत जाना, फिर आपको डेवलपमेंट में बहुत इश्यूज आएंगे। मैं फिलहाल नहीं बदल रहा हूँ, ठीक है। टारगेट एसडी और कंपाइल एसडी हमेशा सेम रहेगा। फिर आपका ऐप का वर्जन और ऐप के वर्जन कोड, यहाँ पे आप आपके ऐप के वर्जन डिफाइन करते हो। ये टेस्टिंग के लिए यूज होता है। और ये सारे है बिल्ड टाइप से। एंड्रॉइड में दो तरह के बिल्ड टाइप होता है, एक रिलीज होता है, एक डिबग होता है। रिलीज बिल्ड टाइप प्ले स्टोर पे अपलोड होता है, डिबग बिल्ड टाइप डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। ये सब को इग्नोर कर सकते हो आप, ऑटोमेटिक जनरेट होंगे, और यहाँ पे आपको कोई एरर आने के चांसेस नहीं है। मेन ये डिपेंडेंसी। आपने अगर जावास्क्रिप्ट में अगर काम किया होगा, तो उसके अंदर होते हैं नोड मॉड्यूल्स, जो आप एनपीएम के जरिए डाउनलोड करते हैं। वो क्या होते हैं, वो लाइब्रेरीज होते हैं जो आपका टाइम बचाती है। मतलब कुछ ऑलरेडी एक लाइब्रेरी बनी हुई है और आप उसको सिर्फ यूज करते हैं। तो वैसे अगर आपको एंड्रॉइड के अंदर कोई लाइब्रेरी बाहर की यूज करनी है, तो उसको आप यहाँ पे स्पेसिफाई करते हो, इम्प्लीमेंटेशन, और उसके आगे आप अपना नाम देते हो, सिंपल ऐसे। जावास्क्रिप्ट के केस पे हम एनपीएम और उसका नाम देते हैं, वो नोड मॉड्यूल के अंदर वो लाइब्रेरी डाउनलोड हो जाती है। तो यहाँ पे वही काम हम करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन फोल्डर, इम्प्लीमेंटेशन और वो लाइब्रेरी का नाम। जैसे यहाँ पे है बहुत सारी लाइब्रेरी से जो पहले इंस्टॉल हो गई है, किसी को भी हटाना मत, वरना आपका ऐप रन नहीं होगा। ये डिफॉल्ट लाइब्रेरीज हर ऐप के अंदर रहेगी हमेशा, यहाँ पे छेड़छाड़ी मत करना। अगर आपको कोई यहाँ पे नई लाइब्रेरी डालनी है, तो नीचे यहाँ डाल सकते हो आप, यहाँ पे। ये था ग्रेडर की फाइल्स के बारे में। अब आते हैं मेन एक्टिविटी के कोड पे। ऑटोमेटिकली जन मैं सिंक कर लेता हूँ। जब भी आप ग्रेडर में चेंजेस करोगे, ये वाली फाइल, कोई भी फाइल के अंदर, तो आपका सिंक ऑप्शन आएगा, वो सिंक कर देना। देखो मैं अभी चेंज करता हूँ कुछ, एक स्पेस भी ऐड करूंगा ना, कोई भी एक वर्ड भी इधर उधर करूंगा ना, वो चेंज करने बोलेगा। देखो फट से सिंक हो जाएगा, वो हो गया सिंक। अब ये मेन एक्टिविटी, आपने मैनिफेस्ट में देखा होगा मेन एक्टिविटी को। मेन एक्टिविटी का टैग ये रहा, वही है ये मेन एक्टिविटी डॉट केटी। केटी क्या है, केटी बताता है कि ये फाइल का जो कोड है वो कॉटलिन टाइप का है। अगर आप जावा यूज कर रहे हो तो डॉट जावा या डॉट क्लास रहेगा उसका एक्सटेंशन, जो एंड में लगता है, जिससे आपको पता चलता है सिस्टम को कि किस तरह की फाइल है। इमेज के केस में वो जेपीजी जैसा होता है, वैसा एक्सटेंशन केटी मीन्स कॉटलिन सोर्स कोड। अब मैंने कल बताया था कि हर प्रोग्राम का एक एंट्री पॉइंट होता है। कॉटलिन में वो मेन फंक्शन होता है, बट कॉटलिन जब हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट में यूज करते हैं, तो वो मेन फंक्शन होता है ऑन क्रिएट, ये वाला। पहले ऊपर बता देता हूँ।
ये हमारे पैकेज का नाम है, सेम एज नेम स्पेस यही रहेगा जो यहाँ पे था। जब ऐप बनाओगे, ऐप अपना ऐप, तो जो पैकेज यूज करोगे यहाँ पे, ये पैकेज का नाम सेम रहेगा, इसको चेंज नहीं करना। फिर इंपोर्ट, ये जो बाहर की जो फाइल हम अपने ऐप के अंदर यूज कर रहे हैं, मतलब जो भी फाइल जो पीछे चल रही है बैकग्राउंड में, जो जिसका कोड हम नहीं कर रहे बट बाहर से इंपोर्ट कर रहे, वो यहाँ पे आती है, ऑटोमेटिक आएगी। इसको आपको कभी ध्यान नहीं देना है, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होते रहती है, और ऑटोमेटिकली अगर आपने कोई कोड हटा दिया तो हट भी जाती है, ऑटोमेटिक होता है सब काम। इसको आप कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। अगर एरर आया तो वहाँ पे ऑप्शन भी आ जाता है इंपोर्ट का। यहाँ पे क्लास, क्लास कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ क्लास। अब एंड्रॉइड डेवलपमेंट क्लास बहुत भर भर के यूज होता है, हर एक्टिविटी एंड्रॉइड में क्लास ही होती है, हर एक एक्टिविटी एंड्रॉइड के अंदर एक क्लास होगी। क्लास का नाम, जो कि मेन एक्टिविटी, सेम यहाँ पे नाम है उसका, और सेम यहाँ पे भी नाम रहेगा। अगर यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे अगर नाम बदल दिए तो एरर आएगा। एक कोलन कीवर्ड होता है इनहेरिटेंस के लिए, जो हमने कल देखे थे। और कॉम्पैक्ट एक्टिविटी क्लास को ही इनहेरिट कर रहा है, मतलब मेन एक्टिविटी चाइल्ड क्लास है, और एक कॉम्पैक्ट एक्टिविटी क्लास को इनहेरिट कर रहा है। अब आते हैं इसके ऊपर, ये वाले कोड पे। ओवरराइड, ओवरराइड मतलब एक कॉम्पैक्ट एक्टिविटी के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम ऑन क्रिएट है। उस ऑन क्रिएट फंक्शन को हमारी मेन एक्टिविटी ओवरराइड कर रही है, ताकि उस फंक्शन मेथड के बजाय ये वाला पर्टिकुलर मेथड एग्जीक्यूट हो। उसके लिए हम यूज करते हैं ओवरराइड कीवर्ड। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कॉन्सेप्ट होता है पॉलीमॉर्फिज्म का। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मैनी फॉर्म्स। तो अगर पेरेंट क्लास के अंदर एक फंक्शन बना ऐड, चाइल्ड के अंदर एक फंक्शन बना दिए ऐड, तो सिस्टम को कैसे पता चलेगा कौन सा ऐड एग्जीक्यूट करना है, पेरेंट क्लास वाला या चाइल्ड क्लास वाला? तो अगर हमको सिस्टम को बताना है कि चाइल्ड चाइल्ड क्लास वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, तब उनके उस केस में हम लिखते हैं ओवरराइड कीवर्ड। फन मतलब वही सिंटैक्स ऑफ फंक्शन हमने कल देखे थे। फन कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन अ फंक्शन। ऑन क्रिएट फंक्शन का नाम है, इसको आप बदल नहीं सकते, और इसका एक पैरामीटर ले रहा है, सेव्ड इंस्टेंस स्टेट बंडल करके। और एक सुपर ऑन क्रिएट है। सुपर कीवर्ड, अब मैंने बताया आपको कॉम्पैक्ट एक्टिविटी के अंदर भी एक ऑन क्रिएट फंक्शन होगा, इसीलिए तो हम यहाँ उसको ओवरराइड कर रहे हैं। तो अगर जो पेरेंट एक्टिविटी है उसका अगर हमें ऑन क्रिएट मेथड को कॉल करना है, तब हम सुपर कीवर्ड यूज करते हैं। सुपर डॉट ऑन क्रिएट फंक्शन जो कॉम्पैक्ट एक्टिविटी के अंदर बना है, उसको एक पैरामीटर पास कर रहे हैं। अब ये जितनी चीज देख रहे हो ना आप, ये हर एक्टिविटी में रहेगी रहेगी, आप इसको हटा नहीं सकते। हटाएंगे तो एक्टिविटी आपकी क्रैश हो जाएगी, चलेगी ही नहीं। हर एक्टिविटी के लिए ये जो हाईलाइट किया हो ना, हमें वो कॉमन रहेगा। ओवरराइड फन ऑन क्रिएट, सुपर ऑन क्रिएट, कोलन कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, और सेट कंटेंट, ये वाला मेथड ये हर ऐप के लिए कॉमन है। अब आते हैं अंदर। इसके पहले हम ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम जेटपैक कंपोज के बारे में थोड़ा जानेंगे। हाँ, हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो। हाँ, ठीक है, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। तो अभी 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, अभी 8:30 हो रहे, 8:40 तक। उसके बाद आई विल इंट्रोड्यूस यू टू जेटपैक कंपोज। आपको अभी ये कोड समझ में नहीं आ रहा होगा, जब जेटपैक कंपोज बताऊंगा ना आपको, तब समझ में आएगा ये कोड है क्या। नीचे का ये, फिर ये ग्रीन में जो भी दिख रहा है आपको ये। अगर आपको तब तक कुछ डाउट्स है तो यू कैन डेफिनेटली टाइप दैट इन द चैट सेक्शन।
Okay, it's 8:40 now. We will restart. I hope my screen is visible. Okay, so we will start from where we left off. This green thing you are seeing right on the screen. So what does my first Android app theme does? So basically, this is first. Let me introduce you to Jetpack. So Jetpack Compose is a modern toolkit for building Android UIs. What is UI? Anything that user sees on the screen, anything that user interacts with on their mobile phone on the screen is known as user interface. The short form of that is UI. UI development is an entire career, and you can become a UI developer. It's very lucrative career. So basically what we will do is you will design how the app will look like. So UI stands for user interface. So what is Jetpack Compose? Jetpack Compose is a modern toolkit for building that UI. Now, if you have used React, then you do that using components. If you don't use React, then you declare HTML elements inside your HTML file. So what you are doing there by defining those elements, you are basically developing the UI of your application. So how your entire application will look like, what type of components or elements it will have, text, button, switch, etc. So Jetpack Compose is used to develop the UI, the user interface of your Android applications. What happened behind the scene is done using Kotlin. That's the reason why the name of this workshop is Android development using Jetpack Compose and Kotlin. So Jetpack Compose basically you will use it to define the UI, and what will happen in background that will be done handled by the Kotlin programming language. So defining a Jetpack Compose is using Jetpack Compose in your Android application is very easy. You simply use it like a function. This this is a function. What is this? Fun keyword. Fun keyword is used to define a function in Kotlin. Use fun keyword, name of that function, parameter. This is how you make the UI of your application. But the only thing that difference here is the annotation over here, at the rate composable. So what this does, at the rate composable does is it converts this function into a composable. Composable means whatever that user will see on the screen is known as composable. In HTML, it is known as element. In Jetpack Compose, that same element is known as composable. Anything that user sees on the screen, a text, a button, anything that is a composable. So anything that's written, if you see any function and at the rate composable is written over it, that means it is defines the UI of your application. Now Jetpack Compose is declarative. Declarative means you don't directly design your UI, you describe it, declare it, and Jetpack Compose takes care of the rest. So basically, we write how your UI is supposed to look like. You won't directly design it. You will write your code how your UI is supposed to look like. Just like Flutter, you write there how your UI is supposed to look like. Same in Jetpack Compose and even case of React. Both these React the library and Jetpack Compose, both of them are declarative. You basically write how your UI is supposed to look like. You will using at the rate composable annotation, you convert this function into
a Jetpack composable. Composable means anything that user sees on the screen. So this was all about Jetpack Compose. Now, what does this set content method does? This set content. Set content basically calls your UI. So if you have an activity and you need to show some text on that screen. Yesterday we learned about function calling. So all those composable that needs to be shown on the screen are called by set content method. This set content. If your composable is not called from here, it won't show on screen. And that's the reason why it is really necessary to make sure that all the composable that you want to show in a particular activity are called within the set content method. Now my first Android theme. What is this? I previously told you about theming of your Android application. You use light mode, you use dark mode. Each activity has its own color. Each activity has its own uh, color schemes. Each activity has its own font. All those things. All those things are described in themes. This. And where do we find this theme? Inside UI.theme. Here we have three folders, color.kt. So same thing that we did here, colors.xml is done here. So you can also delete this file. So all the colors that you are using in your Android application using Jetpack Compose are defined here. I can also create a new color here. Color are always constant. So I will use val keyword and I want to create red. So color is the name of class and I will directly access the red color that is defined inside it. Sometimes you can access the properties of the class without creating the object itself. Those classes are known as static class, means you can access their properties without creating the object. You can directly access their properties direct with the help of the name of the class itself. So color is some class and inside that class there is one property that's known as red. So I will write red. See, same thing I can do with green, blue, yellow, cyan, magenta, black, all different colors I can design here. Now you can see this and this. This is white, but this is gray. Why is that happening? Because this variable is used somewhere, but the red, green, blue, these are all gray. That basically means that this value is never used anywhere in our Android application. And if you find anything that's gray, that means it's never used, and you can delete it to optimize the performance. But I'm going to use it, and that's why I am not deleting from here. And next is theme. So we have dark theme, dark mode we call it. Then we have light theme. And this is the logic that is auto created when you will create application. Here this will be auto created. This is basically used to switch between dark mode and light mode. On Instagram you go to setting, you can click on dark mode, you click on close that dark mode. So basically what happens, you're basically changing the theme of your application. So whatever that happens is written inside here. In case of Jetpack Compose, in different application developed using different languages, library, framework, this logic might be different. Now, our theme is also a composable. That's the reason why we use this annotation @composable. Why? Because our theme of the application is also a composable. Because the user also sees the theme whenever you open the activity. On the case of dark mode, that theme you see is black. In case of light mode, that theme you see is white. And that's and maybe that's the reason why it is a composable. Why? Because user sees it. Anything that you see on the screen is a composable. And since user see the theme, it is a composable. So this is every time, हर बार आपने जो सब में पहले अपना थीम ही रहेगा. ये जो थीम है ना, ये सब में पहला कंपोजेबल. हर एक्टिविटी में अपना थीम होता है. आप इसको हटा भी सकते हो, बट फिर उसके बाद यूजर वो डार्क और व्हाइट
लाइट मोड के बीच में स्विच नहीं कर पाएगा. इन एवरी केस थीम इज योर रूट. मतलब सब में पहला कंपोजेबल कोई भी एक्टिविटी का आपका होता है थीम. उसके बाद दूसरा कंपोजेबल उस थीम के नीचे होता है समथिंग नोन एज सरफेस. नाउ सरफेस इज अ न्यू कंपोजेबल which is imported from outside here. androidx.compose.material3.surface. material3 के बारे में हम जानेंगे कल के वर्कशॉप में क्या है वो. but it is a composable which means user will see surface composable known as surface on this screen, or all the composable that are defined inside the surface composable will be visible to the user. सो बेसिकली सरफेस करता क्या है, आपने HTML में सेक्शन देखा होगा, सेक्शन या डिवीजन पता होगा आपको. सरफेस का भी काम वही है. एक सरफेस मल्टीपल कंपोजेबल को अपने अंदर, सरफेस के अंदर आप मल्टीपल कंपोजेबल्स को डिफाइन कर सकते हो. जैसे डिवीजन होता है, सेक्शन होता है HTML के केस में, वैसा ही सरफेस यहाँ काम करता है. सरफेस का एक अल्टरनेट कंपोजेबल भी आता है जिसको हम कार्ड बोलते हैं. आप कार्ड यूज करो या सरफेस यूज करो, दोनों एक ही है. बेसिकली आप इसको शेप दे सकते हो, इसका शेप बदल सकते हो, इसको शैडो वगैरह दे सकते हो, तो वो सरफेस के अंदर होता है. अभी हमने यहाँ पे कंपोजेबल बनाया हुआ है, ऑटोमेटिकली बना हुआ है, ये मैंने बनाया नहीं. जब आप कोड नया बनाओगे ऐप तो भाई ऑटोमेटिकली यहाँ बना हुआ दिखेगा आपको. और वो कंपोजेबल का नाम है ग्रीटिंग. इसको हम दो पैरामीटर डिफाइन किए यहाँ पे, बट यहाँ पे पास एक ही कर रहे हैं. ऐसा क्यों? ये जो मैंने हाईलाइट किया हूं ना, ये डिफॉल्ट पैरामीटर है. मतलब अगर आप इसको कुछ भी पास नहीं करोगे ना, सिर्फ एक ही करोगे ना पास, जैसे इन दिस केस सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट पास किए, बट यहाँ पैरामीटर है दो, तब भी कोड रन हो रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि ये डिफॉल्ट पैरामीटर है. मतलब अगर इसको कोई वैल्यू नहीं मिलती है तो इसको डिफॉल्ट वैल्यू मिलेगी, जो कि है ये मॉडिफायर. अगर यहाँ से मैं यहाँ पे कोई मॉडिफायर पास नहीं करता हूँ तो इसको ये डिफॉल्ट, तो ये डिफॉल्ट जो मॉडिफायर मैंने डिफॉल्ट वैल्यू बना रखी है, बनी रखी है ऑलरेडी पहले से, वो इस वाले पैरामीटर को असाइन हो जाएगी. अब अगर आप पास करते हो तो ये वाली वैल्यू असाइन नहीं होगी, कुछ और वैल्यू असाइन होगी जो आप पास करोगे. इसीलिए हम यहाँ पे एक ही आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, बट यहाँ पे पैरामीटर है दो, क्योंकि उसमें से एक है डिफॉल्ट पैरामीटर. अब इसके अंदर हमारा एक कंपोजेबल है टेक्स्ट. टेक्स्ट एज द नेम सजेस्ट डिस्प्लेस टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन. हर कंपोजेबल का जो नाम है ना वो सेल्फ डिस्क्राइबिंग है. टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट क्या करेगा, टेक्स्ट स्क्रीन पे डिस्क्राइब करेगा. और अब ये नीचे आते हैं प्रीव्यू. आपको HTML में जब आप किसी वेब पेज को डेवलप करते हो तो जब तक आप रन नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या आपने क्या डेवलप किया. बट कंपोजेबल के केस में ऐसा नहीं है. कंपोजेबल में एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है प्रीव्यू. मतलब बिना ऐप को रन किए आपका UI कैसा दिख रहा है वो आप देख सकते हो. सिंपली क्लिक ऑन दिस बटन. यहाँ पे जो मैंने जिस पे डिजाइन बटन पे क्लिक करना है, देख बिल्ड एंड रिफ्रेश पे क्लिक करना है. फर्स्ट टाइम में थोड़ा टाइम लेगा. तो देखो, अगर आप प्रीव्यू और कोड दोनों देखना चाहते हो तो बीच के आइकन पे क्लिक करो. सिर्फ कोड देखना है तो ये वाले आइकन पे क्लिक करो. सिर्फ डिजाइन देखना है, प्रीव्यू देखना है तो ये वाले आइकन पे क्लिक करो. दोनों देखना है तो इस पे क्लिक करो, बीच वाले पे. अप टू डेट है, मतलब मैंने अभी यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किया. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेलो. एक टेक्स्ट है जिसके अंदर हमने टेक्स्ट वैल्यू, टेक्स्ट उसका असाइन किया हुआ है हेलो नेम, और नेम हम यहाँ से पास कर रहे हैं एंड्रॉइड. यहाँ पे लिख के आ रहा है हेलो एंड्रॉइड. अब हर कंपोजेबल को अगर आपको कस्टमाइज करना है, उसका कलर, उसकी साइज कुछ भी बदलना है, तो आप ऐसे बदलते हो. ये इसको बोलते हैं हम नेम्ड पैरामीटर्स. मतलब आप बता रहे हो टेक्स्ट के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स डिफाइन किए हुए, और उसमें से हम कौन सा पैरामीटर प्रोवाइड कर रहे, उसके लिए हम लिखते हैं टेक्स्ट इज इक्वल्स टू हेलो नेम. ये हम वेरिएबल क्रिएट नहीं कर रहे, इसको हम नेम्ड पैरामीटर बोलते हैं. मतलब टेक्स्ट के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स है, बट टेक्स्ट पर्टिकुलर जो पैरामीटर है उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए वो हम पास कर रहे हैं. मैं टेक्स्ट के ऊपर होवर करूंगा तो आपको बहुत सारे पैरामीटर दिखेंगे. ये देखो कितने पैरामीटर, टेक्स्ट है, मॉडिफायर, कलर, फॉन्ट स्टाइल, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं यहाँ पे. बट मैं पर्टिकुलर टेक्स्ट को वैल्यू पास कर रहा हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ टेक्स्ट इज इक्वल्स टू.
इसको आप हटाओगे तो फिर ऐप को पता नहीं रहेगा आपने कौन सी वैल्यू यहाँ पे पास की हुई है। देखो ऐप को समझेगा ही नहीं आपने किसके लिए वैल्यू पास किया है, तो बहुत सारे दिख रहे हैं ना। इसके लिए मैं लिखूंगा टेक्स्ट, और जो भी टेक्स्ट आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है वो वैल्यू। और सेकंड वैल्यू अब है मॉडिफायर। मॉडिफायर बेसिकली यूज टू चेंज द अपीयरेंस। एक मिनट। हाँ, sorry for the disturbance. So modifier is used to modify the appearance. So मतलब आपको अगर मार्जिन ऐड करनी है, पैडिंग ऐड करनी है, आपको पोजीशन बदलना है कोई एलिमेंट का, तो आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। इसीलिए उसका नाम दिया हुआ है मॉडिफायर। मॉडिफायर इज यूज टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ योर कंपोजेबल। अब अगर मैं इसको कलर बदलना है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, कॉमा लिखूंगा। हर पैरामीटर के बाद कॉमा लिखना जरूरी है, वरना वो एरर आएगा। तो कॉमा, फॉन्ट, साइज बदलते हैं पहले, और मैं कर देता हूं इसको 40.dp। अब देखो एरर आया। एरर को कैसे रिजॉल्व करूंगा, सिंपली होवर इंपोर्ट। देखो डीपी और एसपी में यही फर्क है कि डीपी अगर आप देखो, आप फॉन्ट, अगर सेटिंग में जाके आपके ऐप की साइज बढ़ाते हो, फॉन्ट साइज सेटिंग में जाके, तो पूरे ऐप में वो रिफ्लेक्ट होता है। तो डीपी हम कब यूज करते हैं, जब आप नहीं चाहते कि आपकी ऐप की जो टेक्स्ट की साइज है ऐप के अंदर वो चेंज हो। डीपी का फुल फॉर्म होता है डेंसिटी पिक्सल, और एसपी का फुल फॉर्म होता है स्केलेबल पिक्सल। स्केलेबल पिक्सल ऐप के जो आपने यूजर ने डिफाइन की हुई साइज है और स्क्रीन के हिसाब से चेंज होगा। बट डीपी अगर असाइन करोगे तो डेंसिटी पिक्सल है, कभी चेंज नहीं होगा। अब अगर वेब पेज खोलते हो अपने फोन में और अपने कंप्यूटर में, वही सेम वेबसाइट अगर खोलते हो, तो साइज का डिफरेंस आता है। क्यों? क्योंकि वो एसपी होता है, स्केलेबल पिक्सल। अगर साइज का डिफरेंस नहीं आता फॉन्ट में, तो वो होगा डीपी, मतलब डेंसिटी पिक्सल। तो यहाँ पे हमने साइज बदले, और यहाँ पे साइज प्रीव्यू में देखेंगे तो साइज बदल दी गई है। इसको मैं 50 कर सकता हूँ तो वापिस बदलेगी, 60 करूंगा तो और बढ़ेगी। इसका आप कलर भी बदल सकते हो। आपको पता नहीं क्या क्या वैल्यूज पास करनी है, तो सिंपली स्क्रीन में जो दिख रहा है टेक्स्ट, उसके ऊपर होवर करो और देखो क्या क्या चीज को आपको यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो मैं अगर इसको कलर बदलना है मेरे टेक्स्ट का, तो सिंपली लिखूंगा कलर इज इक्वल्स टू कलर डॉट ग्रीन। देखो ग्रीन हो गया टेक्स्ट। अगर मैं इसको व्हाइट करना चाहता हूँ तो कुछ भी नहीं दिखेगा, देखो, क्योंकि बैकग्राउंड भी व्हाइट ही है। देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट वो बहुत फेंट है। अगर इसको मैं रेड करना चाहता हूँ तो रेड लिखूंगा, रेड। इससे हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। अब अगर इसको हटा दूंगा ना ये प्रीव्यू वाले को, तो डिजाइन में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। देखो कुछ भी नहीं दिख रहा। बोल रहा है वहां पे नो प्रीव्यू फाउंड, मतलब आपके ऐप का जो प्रीव्यू आप बिना ऐप को रन किए हुए देख नहीं सकते। अगर आपको बिना ऐप को रन किए हुए आपका प्रीव्यू देखना है ऐप को, तो ये प्रीव्यू का होना बहुत जरूरी है। और प्रीव्यू के ऊपर प्रीव्यू एनोटेशन का होना बहुत जरूरी है। आप यहाँ पे उसको प्रीव्यू का नाम भी बदल सकते हो, नेम, लाइट मोड, जो भी। और यहाँ पे शो सिस्टम यूआई ट्रू, मतलब पूरी स्क्रीन बताएगा। देखो देखो अगर शो सिस्टम यूआई हटा देंगे तो सिर्फ कंपोजेबल को बताएगा, सिर्फ कंपोजेबल बता रहा है। बट आप चाहते हो कि आपको मोबाइल की पूरी स्क्रीन देखनी है, तो उसके लिए आप ये करो, शो सिस्टम यूआई को ट्रू कर दो। शो सिस्टम की यूआई की जो वैल्यू होती है वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होती है, हम उसको सिर्फ बदल रहे हैं। देखो हेलो एंड्रॉइड लिखा हुआ आ रहा है। मैं को चाहता हूँ हेलो एंड्रॉइड सेंटर में लिखा है, तो उसका सिर्फ टेक्स्ट अलाइन चेंज कर दो। अलाइन टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये एक सिर्फ टेक्स्ट के अंदर है, और बाय डिफॉल्ट हर पर्टिकुलर कंपोजेबल रैप कंटेंट करता है। अब रैप कंटेंट मतलब क्या? वो सिर्फ उतनी ही स्पेस लेगा जितनी उसको रिक्वायर्ड है। अगर आपको उसको चीज को चेंज करना है, तो आपको सिंपली लिखना होता है मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज।
कब बीच में हुआ, क्यों बीच में हुआ, क्योंकि वो पूरी विथ कंज्यूम कर रहा है। अगर मैं इसको हटा देता हूं तो वो रैप कंटेंट होगा। रैप कंटेंट मतलब उसको जितनी स्पेस रिक्वायर्ड है उतनी ही यूज कर रहा है, और ये जो बची हुई स्पेस दिख रही है आपको वो कंज्यूम नहीं कर रहा, इसीलिए वो सेंटर में नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये जो स्पेस दिख रही है आपको इतनी ही स्पेस कंज्यूम कर रहा है, देखो। बट अगर मैं इसको फिल मैक्स साइज करूंगा तो मतलब ये पूरी विथ कंज्यूम कर रहा है और टेक्स्ट बीच में आ रहा है। अब इसको मैं एंड में भी लिख सकता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ टेक्स्ट को एंड में लिखो तो एंड लिखूंगा यहाँ पर। अगर मैं शुरुआत में दिखाना चाहता हूँ उसको लिखूंगा स्टार्ट। स्टार्ट बीच में आ गया, शुरू में आ गया। मैं चाहता हूँ सेंटर में लिखूँ तो सेंटर में लिखूंगा, आ गया बीच में। अब ऐप को रन कैसे करना है, यहाँ पे पहले बताया था मैंने, प्ले बटन पे क्लिक करो। पहले आपका ऐप कंपाइल होगा और एम्यूलेटर खुलेगा ऊपर। अभी स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो एक एम्यूलेटर। एम्यूलेटर अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो वो पहले 1-2 GB का होता है, वो इंस्टॉल होगा फिर खुलेगा। तो आपको पेशेंट रहना है, एक ही बार इंस्टॉल होगा 2 GB का एंड्रॉइड ओएस इंस्टॉल होगा आपके फोन पे। अभी मैंने बोला था एंड्रॉइड एप्लीकेशन सेम टू सेम कंप्यूटर में चलेगा, इसके लिए बूट हुआ अभी, जैसे मतलब स्विच ऑन हुआ। अभी एम्यूलेटर है गूगल पिक्सल का, इसके लिए यहाँ पे गूगल लिखा हुआ है। अब सैमसंग का डालोगे तो यहाँ सैमसंग लिखा आएगा। तो पिक्सल स्टार्ट ही गूगल पिक्सल का एम्यूलेटर है ये, और इसका एंड्रॉइड वर्जन है एंड्रॉइड 14। ठीक है, इसको बंद करता हूँ मैं, और ऐप को एक और बार रन करता हूँ। इस बार रन किया तो सिर्फ एम्यूलेटर ऑन हुआ, ऐप रन नहीं हुआ। अगर ऐप को रन करना है तो मैं प्ले पे दबाऊंगा। ओके, किसी वजह से ऐप रन नहीं हो रहा। ओके, इसकी वजह से ऐप रन नहीं हो रहा। मेरे सिस्टम में जो स्पेस है फुल हो गई। ठीक है, एम्यूलेटर का हम कल देखेंगे, बट आपको आज दूसरे कंपोजेबल्स के बारे में बता दें। तो एक हमने टेक्स्ट देखे, जेटपैक कंपोज देखे, सरफेस बता दिया मैंने आपको, टेक्स्ट बताया। अब रोज एंड कॉलम्स। रो एक कंपोजेबल है, कॉलम एक कंपोजेबल। रो कंपोजेबल्स को हॉरिजॉन्टली अरेंज करता है, और कॉलम कंपोजेबल को वर्टिकली अरेंज करता है। और दोनों कंटेनर बोलते हैं। क्यों कंटेनर बोलते हैं? क्योंकि दोनों के अंदर बहुत सारे कंपोजेबल्स होते हैं, इसके लिए उनको बोलते हैं कंटेनर्स। तो इसका भी सिंटेक्स वही रहेगा। इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ लिखूंगा कॉलम। के मेरे मेमोरी का इशू हो रहा है यहाँ पे, स्टोरेज इज फुल फॉर सम रीजन। तो मैं अब कुछ भी सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ तो सेव नहीं हो पा रहा। ठीक है, आज के सेशन को इधर ही हम खत्म करते हैं। मेरा सिस्टम का कुछ तो इशू हो रहा है यहाँ पे। कल हम कंपोजेबल के बारे में और डीप में पढ़ेंगे। वैसे भी 9:05 हो रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी एक्सीडेड आवर टाइम। वी हैड टू क्लोज दिस सेशन ऑन 9, एंड बिकॉज ऑफ सम रीजन ऑफ माय सिस्टम, मेरे सिस्टम का इशू है, मतलब ये मेरी सिस्टम में कुछ तो इशू हो रहा है, इसकी वजह से हम कंपोजेबल को और डीप में कल देखेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी इशू हो, कोई भी एरर आ रहा हो एंड्रॉइड को सेटअप करने में, कोटलिन प्रोग्रामिंग रिलेटेड, तो फील फ्री टू आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, एंड वी विल स्टडी लर्न अबाउट जेटपैक कंपोज इन डीप टुमारो। कल हम अलग अलग जेटपैक कंपोज के बारे में कंपोजेबल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे इमेज हो गया, कॉलम, रो, बॉक्स, कार्ड, स्विच, वो सब के बारे में हम कल पढ़ेंगे।
और एक सिंपल सा ऐप बनाएंगे हम कल जो एमुलेटर पे रन करेंगे। आज मेरे सिस्टम का कुछ इशू हुआ है, इसकी वजह से हम उसको कल देखेंगे। थैंक यू guys for joining and hope you have a good night. See you tomorrow at the same time. And if you have any doubt, feel free to ask me. I'm always there. And my email is, you will get my email. I will ping it on the group.